Okay, so good evening, everyone, and all the online students also who are watching us. We have already conducted one session on sociology 1 week back, and this is the second session in the same series, and we'll be having more such sessions in the coming times. Um, what are we going to do in this session? Firstly, those students who may have missed the first session, I'll briefly talk about those things which I discussed in the last session. At the same time, I'll also discuss some of the important things with respect to this optional subject that can help you decide whether the subject really interests you or not. Okay. And by the way, we are also going to have one quiz at the end of the session, which is going to be very interesting for all of you. Before I begin this session, I would like to ask one question, okay, to all of you, just to understand how do you guys think about everyday life. All of you must have noticed, and by the way, online students, am I audible to you enough? Volume ठीक है? Yes, okay, fine. So I would like to ask you one question, very basic question first. Um, because sociology as a subject often forces us to think beyond what we usually perceive in our everyday life. हमें कुछ चीजें सोचने में मजबूर करता है ये सब्जेक्ट. जैसे कि एक सवाल से मैं शुरुआत करता हूँ. Most of you may have observed that most of the criminals are men, not women. ऑब्जर्व किया होगा आपने. मेरा सवाल है क्यों. ओके, जो जो आप बोलोगे मैं ना यहाँ लिखते जाऊंगा, ठीक है. कहाँ गया पेन, ये रहा. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, you may also give your answers. Why is it that most of the criminals are men, not women? Okay, that means कि हमने क्या किया, हमने क्या सवाल खड़ा किया है, जो नोन चीज है उस पर सवाल खड़ा किया है और अपने आप को सोचने में मजबूर कर रहे हैं कि हाँ क्यों. सोशियोलॉजी का मकसद ये है कि हर एक चीज जो हमें दिखती है उसके आगे वाई लगाना. ओके, सो क्वेश्चन हमारा था why most of the criminals are men. आपने बोला क्योंकि एक तो इन्होंने बोला है men are given more freedom. Okay, your name? भावी. भाभी. भावी. ओके, ठीक है. एक और मैं पॉइंट ऐड कर लेता हूँ ना. बायोलॉजिकल आपने बोला. ओके, बायोलॉजिकल फैक्टर है. दैट मीन्स यू आर सेइंग that the design of men and women differ, and that design also influences to some extent the propensity of crime. Okay, and the design according to you is that women are more sensitive, physically strong and less sensitive. बिल्कुल सही बात है कि जनरल ऑब्जर्वेशन है ये. ठीक है, अच्छा. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब सही है, मैं बस आप जो बोलोगे मैं लिखते जाऊंगा. हाँ जी. Okay, so you are saying that uh, men were given this responsibility to take care of the survival of the members in the family, which made them go out and explore the world. And because of them going out, there are higher chances of them becoming criminal. Okay. Um, so second reason you are saying is that men were initially hunters, and this is how they have evolved, and that is how they have naturally developed this tendency to explore the world and hunt outside, so to say. Okay, which one of them could be a crime, could be one of form. Yeah, okay, fine. So men were
hunters since the beginning of civilization, and they had higher exposure to outside world, high responsibility to feed the members of their family and therefore crime. ऐसा आप कुछ कह रहे हो. ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं देख लेते हैं. Society, Ashish, how is society imposed lots of restrictions on women, and with women empowerment we can observe proportional rise in crime in women too. Very nice point. वुमेन क्राइम भी आजकल देखने को मिल रहा है, राइट? और वो इसलिए है क्योंकि वुमेन अब रिलेटिवली दे हैव बिकम फ्रीयर फ्रॉम दोज सो कॉल्ड रिस्ट्रिक्शंस व्हिच अर्लियर दे वर सब्जेक्टेड टू. राते अनवर बोल रहे हैं, men are taught to be the provider of family, and if person does not have opportunity to earn legally, he might try to use illegal means to earn, whereas women do not have this pressure. Fine. अनुष्का कह रही है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी. आपने एनिमल मूवी देखी है क्या रिसेंटली अनुष्का? शेखर, पेट्रियार्की. अनुष्का, बिहेवियरल policing is often done on women and not men. ओके, ठीक है. कहने का मतलब ये है सोसाइटी puts more pressure on men. Fine. Women are relatively free from this pressure. This is what you are saying. Second person is saying toxic masculinity. Behavioral policing is often done on women and not men. Okay, behavioral policing का basic मतलब होता है कि how to behave, how not to behave, कैसे समाज में रहना कैसे नहीं, ये women के ऊपर ज्यादा किया जाता है, men के ऊपर नहीं. तो men are free, they can do anything, whereas women के ऊपर policing ज्यादा होती है. Okay, behavioral policing. Okay, fine, बहुत सारे फैक्टर्स हैं यानी कि सर वीडियो क्वालिटी इज वेरी लो. यार बिल्कुल हो सकता है क्योंकि लाइव है ना, इट्स फुल ब्लर. क्या कहते हैं अजय, अगर आप देख रहे हो इसको जरा चेक कर सकते हो क्या अपने एंड से? कुछ अपने यहाँ से हो सकता है. नितेश, फुल ब्लर आ रहा है. आई नीड टू टॉक टू द वीडियो टीम आई गेस. अगर वीडियो टीम वाले मेरे को सुन रहे हैं तो प्लीज, अगर ये ब्लर वाला कौन चक्कर जो है यहाँ से ठीक हो सकता है तो प्लीज फिक्स इट एट योर एंड, अदरवाइज शायद मे भी कुछ इंटरनेट कनेक्शन हो. Fine. I don't know, maybe it's some technical glitch. They need to check it from their end. Anyway, तब तक की लिए काम चला लेते हैं जितना भी चल रहा है लाइव में. अभिषेक, ड्यू टू मिक्स ऑफ पेट्रियार्की, सोशल कंडीशनिंग एंड जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर. फाइन, ओके. देखो, बहुत सिंपल सी बात है. हाँ जी, हाँ जी, प्लीज आइए. आपने बोला मैन आर गिवन मोर फ्रीडम, बायोलॉजिकल फैक्टर्स आर देयर. Men were hunters, etc., since the beginning, and that is how they were trained to go outside, explore, and you know, in their so-called pursuit of exploring the world, they may even commit crime. Society puts pressure on men to earn and feed their members. That is why they are more vulnerable. Toxic masculinity, behavioral policing. So, in very simple language, I would say, firstly, one thing is for sure: we can't say that men are naturally criminal. Okay, we can't say that biologically they are designed like this. Okay, one thing that we must understand is that conditioning of men and women differ. Okay, both are manufactured very differently by the family. Understand family like a factory, and in this factory men and women are constructed.
since childhood. How men and women are constructed since childhood? Family members will gift their male child different things and female child some different stuff. You will notice men को क्या क्या गिफ्ट किया जाता है? कंस्ट्रक्शन वाले टॉयज टू कंस्ट्रक्ट द थिंग्स है ना. वुमेन को क्या दिया जाएगा? डॉल, किचन सेट. ओके, आपने देखा होगा, ये नोटिस किया होगा. क्या हम ये बोल सकते हैं कि women are naturally having doll like personality? No, they are made to have this feeling of what we call as the doll. Okay, or they are made to feel soft, they are made to feel docile, soft spoken. एक तो टॉयज के टर्म्स में हमने देखा है कि फैमिली थोड़ा डिस्क्रिमिनेट करती है. दूसरा, यू मस्ट हैव नोटिस दैट द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, father and mother or grandfather, often treats both of them differently when they address the two. Like when they would call the boy, they would be more like, "Oi, pani leke aa, ye kar." They would be very harsh on the boys. They may even slap the boys. But when it comes to girl, they're very soft with girls. Okay, they would not say "Oi," they would say, "Beti, pani leke aa jao." Okay, or they would not slap her. Never. So the treatment given to male and female is also very different. Thirdly, as the time progresses, as the time passes, the male are, expected to feed their family members. They are expected to be the breadwinners. Women are not initially uh, reeling under this pressure of feeding their family members. That means men are somehow conditioned or socialized to feed their family members. And in case if they are not able to feed them legally, they may feed them illegally. So the pressure of becoming breadwinner is more on men. And if they are not able to fulfill this pressure legally, they may go for illegal method. That means if you put the pressure on women, she may turn out to be criminal later on. And if you release men from this pressure, basically, you will see men not having so much of criminal tendency. That means the way we are manufacturing men and women shapes who will become criminal in the future. That means there is nothing biological about men being more criminal or women being less criminal. You will actually notice, I'll teach you later on, there are some societies in Africa where women are also hunters. Okay, this idea that men are hunter, women are gatherer, this is very old um, set of idea which was popular at one point of time, but later on it was discovered that women were also hunters. And in those societies, women are not just hunters, women are also cannibalists. Cannibalist आपको मालूम है, जो आदमियों को या इंसानों को खाते हैं. यूजुअली हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वुमेन भी ऐसा करती होंगी, बट अफ्रीका में कुछ ट्राइब्स हैं जहां पे मैन और वुमेन दोनों ही हंटर हैं और दोनों ही कैनिबलिस्ट है. इसका मतलब क्या हुआ? हर समाज में आपको मैन और वुमेन का नेचर अलग दिख सकता है, क्योंकि समाज ही ट्रेन कर रहे हैं मैन को और वुमेन को अलग अलग तरीके से. ओके, फाइन. तो यानी हमने ये समझा कि जिसको हम बॉय बोलते हैं और जिसको हम गर्ल बोलते हैं, ये दोनों के दोनों आर मैन्युफैक्चर्ड बाय फैमिली. फैमिली ही दोनों को ट्रेन करती है कैसे रहना है उस चीज के लिए. और फैमिली अक्सर वो वैल्यूज पास ऑन करती हैं बॉयज को, कैसा रहना चाहिए. आपने देखा होगा, बाय चांस इफ अ बॉय इन स्कूल डेज इज लाफिंग ऑन जोक्स, ओके, सो अदर पीपल वुड से, अबे कितना हंसेगा, लड़कियों की तरह हंस रहा है. ओके, सो यू वुड सी men are not supposed to laugh for more than a minute. If they are laughing on one joke for more than a minute, that means they are not boys. ऐसा एक प्रेशर हो जाता है इंसान के ऊपर, जोक पे ज्यादा हंसना नहीं है. ओके, एंड women on the other hand, if she is not laughing,
on a joke, then she is not seen as woman. Okay, so ना कंस्ट्रक्शन हमने ऐसे कर दिया कि लड़का है तो ऐसा, लड़की है तो ऐसा. Fine. Which means there is nothing natural. ये हम सब कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. Okay, anyway, I'll ask you one more question. ऐसा देखा गया है जब भी कोई भी ट्रेडिशनल विलेज और मॉडर्न सिटी को कंपेयर करते हैं हम, तो कुछ चीजें बड़ी अजीब लगती हैं. जैसे कि कभी आपने सोचा है दैट यू विल फाइंड साइकोलॉजिस्ट इन सिटीज मोर एंड लेस इन विलेजेस? कभी आपने सोचा है काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट ये सब शहर में ज्यादा होते हैं गांव में? क्यों? ओके, वेरी नाइस. क्वेश्चन लिख देते हैं वापस से. व्हाई डू वी हैव मोर नंबर ऑफ साइकोलॉजिस्ट्स और काउंसलर्स एज प्रोफेशनल्स, है ना, इन सिटी? तो इन्होंने बोला है, भाभी ने, कि हसल बहुत है शहर में. इसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करें, हम क्या बोलना चाहोगे आप? हसल का मतलब आप क्या कहना चाहते हो? क्यों? हम्म. हम्म. ओके, ठीक है. ओके, so she's saying that in city life there is too much of stress which develops due to 9 to 5 work schedule. In city life, people are moving fast to and fro to get the so called fruits of success, to reap the benefits of development. Okay, in city life, individual, you are saying, behaves very differently. अच्छा. ओके. ओके, तो ये आप कह रहे हो वर्क लाइफ इश्यूज या स्ट्रेस आप बोल लो उसको. दूसरा, लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट आप कह रहे हो. ओके. एंड क्लोज बॉन्ड टाइज. और कुछ? रिलीजन वाला पॉइंट क्या बोला आपने? अच्छा, ठीक है. ये कह रहे हैं रिलीजियस वैल्यूज गांव में ज्यादा होती है, शहर में कम. एटलीस्ट ऐसा देखा जाता है, माना जाता है. इस वजह से भी लोग शहर में अकेला फील करते हैं या फिर लैक ऑफ सपोर्ट फील कर रहे हैं, क्योंकि रिलीजियस वैल्यूज गायब है वहां पर. स्ट्रेस इज नॉट मेजर्ड इन विलेजेस. फाइन. ओके. हम्म. ओके, इन villages people may think the other person is mad. Okay, even if the other person is made to consult someone, other people in the villages may start considering him as mad person because he is consulting some psychologist. Okay, so वो madness का label लग सकता है यहाँ पे. In शहर maybe he may not be seen as mad, it will be seen as normal. कुछ सोशल एक्सेप्टेंस शहर में ज्यादा है, साइकोलॉजिस्ट की गांव में नहीं. कुछ ऐसी बातें आप कर रहे हो. ओके. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फैमिली रिलेशंस काफी हद तक स्टैटिक हैं और फिक्स्ड रोल्स हैं. तो टेंशन के पॉइंट्स
लाइक नई जनरेशन को लेकर घर की औरतों की इंडिपेंडेंस को एटसेट्रा एटसेट्रा जैसे इश्यूज कम आते हैं, ठीक है। इन रूरल, दूसरे वायु बोलते हैं, इन रूरल फीलिंग डिप्रेस इज जस्ट अ मूड। Drink milk, curd, cheese, and you are all good again. Okay, very nice. Shreya's iPad. Still screen blur. Okay. No, क्या आ रहा है यहाँ पर? Um, I'll definitely ask them to fix this quality, video quality thing. Wait a second. अजय, अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज देख लो जरा वीडियो क्वालिटी को लेके क्या इशू आ रहा है. आइडिया ऑफ एलिनेशन ऑफ मार्क्स, अब मत उसको मत लाओ अभी. डोंट टॉक अबाउट मार्क्स और एलिनेशन वो सब. ओके, फाइन. Online students, for the timing until we fix this issue of video quality, just bear for next 25 minutes. We'll see what they can do from their end. Okay. देखो, जो भी आपने बोला वो बिल्कुल सही है. आपने जो जो बोला सब सही है. In the city life, there is lot of stress due to work related roles, 9 to 5 schedule. People are expected to become successful when they are in city. People actually go or migrate from village to city to become something, so that when they return to their village, they are seen as someone who has done something in his life. Okay, city is always seen as, a stage where you can project yourself or showcase your talent, and when you return you are seen as someone who has done something in his life. Okay, now in this all pressure to do something, to become successful, to become economically very rich, you are undergoing pressure of 9 to 5. And in this idea of becoming successful, you are not even meeting your friends. In fact, you don't even end up making a lot of friends in city. You become isolated or alienated. आपने खुद भी notice किया होगा, since the days you are preparing for civil services, you have cut off from your many friends or family ties. I mean, you are not in so much of interaction with your family or friends the way you used to interact with them earlier. Okay, why? Because city life has compelled you to compete with all your peers. That means city के अंदर, शहर के अंदर कुछ है, जो आता है वो भागता है. बच्चे आते हैं तो वो भी भाग रहे हैं, compete कर रहे हैं. वर्कर्स आ रहे हैं गांव से तो वो भी compete कर रहे हैं. सिटी लाइफ के अंदर अपने आप में कुछ है, तो बात इंसान की नहीं, बात सिटी की है. ऐसे ना बोला जाता है कि मुंबई सोता नहीं है, बोलते हैं ना, जैसे कोई इंसान हो वो, जैसे वो कोई इंसान हो कि वो सोता या जागता हो. वो कोई इंसान नहीं, लेकिन तो भी हम इंसान की तरह ट्रीट कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि सिटी लाइफ इज जस्ट लाइक अ बायोलॉजिकल ऑर्गन. City is just like a biological organ. It has its own life. It has its own social settings. जिस भी इंडिविजुअल को आप उसमें डालोगे वैसा इंसान बिहेव करने लग जाता है. Since there is lack of family support in city life, lack of social ties, lot of stress, that is why psychologist becomes more relevant in city. Whereas in villages, what happens? Support is very strong in village. Whole village knows you. But in city, nobody knows you. Even your neighbor doesn't know you. So that means in village, social support is very strong. And people, by chance, if something wrong if something wrong happens with any one of the individual in the village, whole villagers would gather together. क्या हुआ, सब ठीक है आपके घर पे? बट शहर में ऐसा कुछ नहीं है. इसका मतलब कि गांव में पूरा विलेज जो है वही साइकोलॉजिस्ट का रोल प्ले कर देता है, और शहर में ऐसा सपोर्ट नहीं है, तो किसी इंसान को स्पेशलाइजेशन लेनी पड़ती है उस चीज में. इसका मतलब क्या हुआ? विलेज के अंदर कम्युनिटी टाइज आर वेरी स्ट्रांग, एंड शहर में इंडिविजुअलिज्म इज वेरी स्ट्रांग. एंड टू कंपनसेट फॉर दैट इंडिविजुअलिज्म और लैक ऑफ सपोर्ट, साइकोलॉजिस्ट कम्स. अंडरस्टूड? यानी कि आपको सोशल सेटिंग समझनी पड़ रही है हर जगह की, तब जाके समझ आ रहा है कि वहां पे ऐसा क्यों, यहाँ पे ऐसा क्यों. राइट? एक स्कॉलर हैं, उनका मैं नाम लिख रहा हूं यहाँ पे इसके कॉन्टेक्स्ट में. अब आप मुझे बताना वो सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं. इनका नाम है डरखाइम. इज ही राइट और रॉन्ग?
राइट? तो यू टेल मी, वेयर विल यू सी हाई सुसाइड रेट, इन शहर और इन गांव? ज्यादा, मैंने बोला ज्यादा कहां पे होंगे, शहर में या गांव में? शहर में, ठीक है, क्योंकि शहर में सोशल सपोर्ट कम है। ओके, दूसरा सवाल, ज्यादा सुसाइड किस में होंगे, शादीशुदा लोगों में या सिंगल लोगों में? हु डू यू थिंक विल हैव हायर सुसाइड चांसेस, सिंगल पीपल और शादीशुदा पीपल? सिंगल। मैरिज में मर्डर हो रहा है, मैं बात सुसाइड की कर रहा हूँ। आजकल मैरिज में मर्डर हो रहा है, मैं बात सुसाइड की कर रहा हूँ एक्चुअली। तो सुसाइड जो है वो सिंगल में ज्यादा है, मैरिज में सपोर्ट है क्योंकि, है ना? इफ अ हस्बैंड इज ट्राइंग टू थिंक ऑफ jumping off the 10th floor, before jumping off the 10th floor he is thinking of his wife, his kids, because there are some social bonds which he is attached to, or which are restricting him from committing such kind of step, whereas a single person has no such accountability, responsibility, no such bonds, so he is relatively free, and that is why more prone or more vulnerable. इसका मतलब कि बॉन्ड्स का एक रोल है। जनरली हम सोचते हैं उसके लाइफ में कुछ दिक्कत है, पर्सनली पर्सनली तो होती होगी जो भी है, लेकिन बॉन्ड्स का अपना एक आप में रोल है, सोशल सपोर्ट का अपने आप में एक रोल है। वन मोर क्वेश्चन आई विल आस्क यू, हु डू यू थिंक विल हैव हायर सुसाइड, अ रिलीजियस पर्सन और एग्नोस्टिक पर्सन? एग्नोस्टिक मतलब जो धर्म वरम में विश्वास नहीं करता, और दूसरा जो धर्म में बहुत मानता है। सुसाइड के चांस ज्यादा किसमें है? एग्नोस्टिक में। क्यों एग्नोस्टिक, क्यों? ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी एग्नोस्टिक बोल रहे हैं, बिकॉज, यस, राइट, very nice. If you are religious, it is not just that you are a believer in God, you are also participant of many rituals. आपको दिवाली जब होती है बड़ा अच्छा लगता है ना? क्यों? एक रौनक बन जाती है ना? सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, है ना? कैंडल जला के बात वो नहीं है, जब तक लोग इकट्ठे ना हो। अकेले आदमी दिया जला ले, क्या वो दिवाली मनाएगा वो, जब तक लोग साथ ना हो, है ना? ऐसा देखा जाता है, रिचुअल्स जो होते हैं रिलीजियस, वो लोग को एक साथ कर देते हैं। टेंपल में देखो लोग एक साथ होते हैं, एक साथ। ओके, whereas a person who is agnostic, who does not believe, he is not attached with any of such thing which bring people together. That is why the chances of him being more lonely is higher than a person who's religious. That is why religious person has more social support, therefore lower suicide rate. And I'll tell you, all these things are actually observed by sociologists. They have found out patterns कि यार जितने लोग सुसाइड किए उनमें एक पैटर्न है। शादीशुदा लोगों में कम है, ऐसा नहीं नहीं है, उनमें है, बट कम है वर्सेस सिंगल। धार्मिक लोगों में कम है वर्सेस नास्तिक। पैटर्न ढूंढने की कोशिश है। पहले आप ये समझ लो कि सोशियोलॉजिस्ट का मकसद है टू फाइंड आउट पैटर्न्स। ओके, वन मोर क्वेश्चन, विच person will have higher chances of suicide, someone who's educated or someone who is illiterate? You will see educated people have higher suicide. इससे ज्यादा पढ़ाई लिखाई सेहत के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है? एजुकेटेड पीपल हैव मोर सुसाइड, व्हाई? Educated people become very ambitious. In fact, ambitions draw them towards education. City life is drawing them towards it, to become ambitious and to become prosperous, to become powerful, to become statusful, to become wealthy.
Okay. And in case if they are not able to do so, if they are not able to achieve whatever they desired, they start looking down upon themselves कि मैंने क्या किया जिंदगी में. That means the value of prosperity, power, status is forcing them to do something. If they are not able to do so, they start questioning themselves कि मैंने पढ़ाई लिखाई क्यों करी. And that is how they go into self doubt mode and then they commit suicide. Whereas जिसने पढ़ाई लिखाई करी ही नहीं, उसने एम्बिशन डेवलप ही नहीं किए, ना उसको वेल्थ का, ना स्टेटस का, ना पावर का क्रेज रहा, एम्बिशन डेवलप हुए नहीं, तो वो हमेशा खुश रहा जितना मिला उसको. पर पढ़ा लिखा आदमी खुश नहीं रहता बहुत देर तक, उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए. और इस वजह से chances of suicide is more. Lack of social support. Okay. Have you ever observed that in America, I'm talking about America as an example here, many famous Hollywood celebrities and singers have committed suicide? Hmm? I don't know about 27 Club, but yes, many popular Hollywood celebrities and so-called singers have committed suicide. Because उतना ऊपर जाके जिंदगी में आप अकेला फील करते हो. इतना फेम पॉपुलैरिटी के बाद यू बिकम lonely. You don't have that much social support. When you started from this place, you had so much of social support. When you reach up high at this point, you start getting lonely again. Lack of social support. So ये डरखाइम ने जो एक बात कही, ये सिर्फ एक बात नहीं है, एक लॉ है. लॉ ऑफ सोशल वर्ल्ड. लॉ ऑफ सोशल वर्ल्ड. उसने एक पैटर्न डिस्कवर कर दिया और इस चीज के लिए उसको साइंटिस्ट बोला गया ऑफ सोसाइटी. ही इज अ साइंटिस्ट ऑफ सोसाइटी. ही फाउंड आउट पैटर्न. अंडरस्टूड दिस. ओके, फाइन. सो ओवरऑल कहने का मेरा मतलब यही है कि एक सोशियोलॉजिस्ट क्या पढ़ता है. सोशियोलॉजिस्ट स्टडीज, इनफैक्ट स्टडीज की जगह मैं बोलूंगा सोशियोलॉजिस्ट डेवलप्स लॉज ऑफ सोसाइटी. लॉज ऑफ सोसाइटी. मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा लॉ ऑफ सोसाइटी का. बहुत सिंपल एग्जांपल है. सोशल सपोर्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ सुसाइड. है ना. दिस इज हाउ वी टॉक अबाउट लॉज इन मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री. है ना. लॉ बन गया. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज साइंस ऑफ सोसाइटी. ये तो सिर्फ आपको एक एग्जांपल देके मैं बता रहा हूँ सुसाइड के केस में. ओके. आप देखोगे मेनी पीपल इन कोटा, न्यूज आती रहती कई बार, स्टूडेंट्स इन कोटा दे कमिट सुसाइड. व्हाई? If that person was not in quota, he would not have committed suicide. That means who took his life? Quota took his life. The pressure, academic pressure, took his life. That means hyper competitive world can take someone's life. It makes you isolated. Understood this point? Okay. So this is one law. Similarly, there is one more law which I would like to talk about. Just to give you one example. Okay. Law ये है, जब जब भी समाज में अनसर्टेनिटी होती है, सपोज करो अर्थक्वेक आ गया, साइक्लोन आ गया, सुनामी आ गया, इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, कोविड आ गया, ये सारे वो ओकेजन्स हैं जब समाज डिप्रेस मोड में है. राइट. ऐसा देखा गया, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, whenever society experiences these periods, over next days or decades, there is rise of godmen. बाबा. जब भी अर्थक्वेक, साइक्लोन्स आते हैं या इकोनॉमिक डिप्रेशन आते हैं, तो बाबा भी आते हैं. नोटिस किया कभी आपने? नोटिस किया है? कोविड के टाइम पे मेनी पीपल बिकेम बाबास. ओके. मेनी पीपल find comfort, sense of support when they watch some people
कंफर्टिंग देम कि ये वक्त ऐसा है, भगवत गीता में ये लिखा है, हमें वो होना है, तो फिर लोग ओके ओके ठीक है, ये वक्त निकालेंगे कैसे भी करके। ओके, पीपल टेंड टू बिकम मोर रिलीजियस इन टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी। कहने का मतलब बड़ा ये है। तो इंसानों का ये देखा गया अक्सर, दे आर वेरी रिलीजियस व्हेन सोसाइटी इज गोइंग थ्रू अनसर्टन टाइम्स, बट व्हेन सोसाइटी इज गोइंग थ्रू सर्टन टाइम्स, यानी कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, तो दे आर वेरी साइंटिफिक, तब वो बहुत साइंटिफिक है। तो एक पैटर्न ढूंढा है, पैटर्न है, when society is going through certain times they are scientific, when uncertain times they are religious। ये भी एक लॉ है, यानी whether you are religious or scientific is defined by what period society is going through। इसका मतलब कोई इंसान नेचुरली रिलीजियस, नेचुरली साइंटिफिक नहीं होता, समाज ही शेप कर रहा है उसको। ओके, सो सोसाइटी एंड इट्स ट्रांजिशन defines degree of religiosity। अब इसी चीज को मैं अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा? मैं ये लिखूंगा इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलीजियोसिटी। इसको आसान भाषा में बोलूं, इफ यू आर वेरी पुअर देन यू आर वेरी रिलीजियस, एंड इफ यू आर वेरी रिच देन यू बिकम एग्नोस्टिक और साइंटिफिक। ऐसा नोटिस किया कभी आपने? मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर रिलीजियस इन दिस वर्ल्ड आर फ्रॉम एशियन सोसाइटीज। मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर, दैट मीन्स अगर पूरे आप ग्लोब को उठाओ और रिलीजन को आप ब्राउन कलर दो और साइंस को ग्रीन कलर दो, तो आपको पूरे वर्ल्ड में ब्राउन कलर ज्यादा कहां दिखेगा? एशियन सोसाइटीज में। क्यों? इकोनॉमी डिफाइंस। एंड बाय चांस अगर उस एशियन सोसाइटीज में इकोनॉमी बूम कर जाए और यूरोप और अमेरिका में इकोनॉमी बस्ट कर जाए, तो आपको उल्टा दिखने लग जाएगा। दे बिकम मोर रिलीजियस एंड दीज पीपल बिकम मोर साइंटिफिक। पैटर्न्स, अगेन बात वही है, पैटर्न्स की स्टडी। अंडरस्टूड? तो ये काम है सोशियोलॉजिस्ट का अल्टीमेटली। एंड वी डोंट फाइंड पैटर्न्स इन जस्ट फ्यू थिंग्स, वी फाइंड पैटर्न्स इन एवरीथिंग, इन एवरीथिंग। Even in international relations we find patterns. International relations is also something that we study. We study politics also, we study religion also। पॉलिटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं मैं। पॉलिटिक्स में वी स्टडी, जैसे बोला जाता है हर सास कभी बहू थी, बोलते हैं ना ऐसे, हर सास कभी बहू थी। ऐसे ही बोला जाता है हर पॉलिटिकल पार्टी का भी प्रेशर ग्रुप था। नाउ व्हाट इज प्रेशर ग्रुप? यूनियंस होते हैं ना, यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, टीचर्स यूनियन, दीज आर प्रेशर ग्रुप्स। ये जो ग्रुप्स होते हैं, यूनियंस होते हैं, चाहे वर्कर्स एसोसिएशन हो, चाहे फैक्ट्री यूनियन हो, चाहे लेबर यूनियन हो, चाहे फार्मर यूनियन हो, चाहे कोई भी यूनियन हो, उबर ड्राइवर का यूनियन हो, ये सारे यूनियंस जो होते हैं ना, यही कल को पॉलिटिकल पार्टी बनते हैं। बीजेपी, बिफोर इट बिकेम अ पॉलिटिकल पार्टी, बिफोर दैट इट वाज अ प्रेशर ग्रुप। उससे पहले वो प्रेशर ग्रुप था। बीएसपी, बिफोर इट बिकेम अ पॉलिटिकल पार्टी, इट वाज अ प्रेशर ग्रुप। उसका नाम DS4 होता था, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। तो हम क्या नोटिस करते हैं? पॉलिटिकल पार्टी इवॉल्व कैसे होता है? पहले वो प्रेशर ग्रुप होता है, बाद में वो पार्टी बनता है, और उसके बाद क्या होता है पता है? वो पार्टी स्प्लिट होती है। ये भी हमने देखा है, क्योंकि उस पार्टी के अंदर कैंप्स बनने शुरू हो जाते हैं। एक पैटर्न नोटिस किया है सोशियोलॉजिस्ट ने, दैट दिस इज हाउ व्हाट द लाइफ साइकिल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज लाइक। सो लाइक फॉर एग्जांपल, Congress became a political party in 1885. But before that, we had people who were putting pressure on British government. Those people were not called as political party until 1885. They were just called as pressure groups.
They became political party, and after becoming political party, Congress broke down into two groups, extremists and moderates. पैटर्न देख लिया ना आपने? ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड हर पार्टी में होता है, ये पैटर्न है। यानी कि हम क्या स्टडी कर रहे हैं? लॉज और पैटर्न्स समाज में हर चीज को लेकर, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो पर्सनल चीजें हो जैसे डाइवोर्स, सुसाइड, लिव इन। हमने ये भी देखा है मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर गोइंग फॉर लिव इन रिलेशंस आर दोज हु आर फ्रॉम अर्बन लाइफ। सिटीज, शहर में लिव इन में है लोग, गांव में नहीं है लिव इन में। एक पैटर्न है। क्यों? क्योंकि सिटी गिव्स यू फ्रीडम, गांव डज नॉट गिव यू दैट फ्रीडम। ओके, city gives you freedom, city gives you ambition, city gives you economic opportunities to stay independent, financially independent, and that is why there are more chances of people living in cities to go into live in, whereas people living in village less chances of going into live in, because village का life ऐसा structured है। यानी कि आपकी जिंदगी में जो भी आप करते हो वो काफी हद तक डिफाइंड है बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। अभी तक हमने ये समझा है एक्सटर्नल फोर्सेस आर शेपिंग योर चॉइसेस। हमें लगता है कि हमारी मर्जी हो रही है, हम कर रहे हैं, नहीं, कोई हमसे करवा रहा है। और वो कोई कौन है? एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक सिटी, विलेज, फैमिली, वैल्यू सिस्टम। यानी हम सब कौन है? ऑल ऑफ अस आर जस्ट एलिमेंट्स विच आर शेप्ड बाय ऑल दीज एक्सटर्नल फोर्सेस। यानी सोशियोलॉजी पढ़ने वाला बच्चा जो है उसको एक चीज बाद में एक्सेप्ट करनी पड़ जाती है कि इंडिविजुअल की अपनी खुद की चॉइस बहुत कम है या है ही नहीं। मोस्ट ऑफ व्हाट द इंडिविजुअल डज इज शेप्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। क्या एटम के खुद की कुछ कॉन्शियस होती है एटम की? या इज एटम और द बिहेवियर ऑफ एटम इज शेप्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स? क्या होता है? एटम, द बिहेवियर ऑफ एटम इज शेप्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। The sociologist will treat individuals just like atoms whose behavior is shaped by external force. Whether he is religious or scientific is defined by changes in economy and many other things. ज्वाइंट फैमिली के लोग अक्सर देखा गया बड़े रिलीजियस होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में रहने वाले लोग कम रिलीजियस हो जाते हैं। एक पैटर्न ढूंढा गया है। ओके, सो इन सब की स्टडी है सोशियोलॉजी, और कुछ भी नहीं। फाइन, नाउ आई वुड लाइक टू टेस्ट ऑल ऑफ यू ऑन अ क्विज। एक क्विज करें छोटा सा। Only 10 questions will be there, and that quiz you will have to solve on your smartphones. ठीक है? 10 questions आएंगे, each question will have 45 seconds to answer. Okay, there will be 4 options, and that quiz will actually help you understand what sociology deals with. Understood? Okay. Online students, are you ready? Or if you have any questions before I begin the quiz, you can ask me. Yes. Yes, ready. Okay, fine. ठीक है. तो अब मैं यहाँ पे कोड लिखने जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू राइट वन कोड हियर. What you have to do is you have to open your mobile phone, go to browser, whatever browser you have, चाहे वो सफारी हो, चाहे वो क्रोम हो, या जो भी है, उस ब्राउजर पे जाके आपको क्या लिखना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. जहां पे आपका HTML लिंक होता है ना, HTTP लिंक, सॉरी, वहीं पे आपको क्या लिख रहे हैं, ZZI.sh. बस इतना लिख के आप एंटर कर दो, ZZI.sh, एंड लेट मी नो जब आप ये कर लो, उसके आगे मत जाना. After writing this, you just have to press enter. This is the step number 1. Done. नेटवर्क कम आ रहा है ना? अजय, एक बार आ जाओ, थोड़ा वाईफाई कनेक्शन दे दो यहाँ पे. Done. All the online students, are you done with it?
Okay, fine. Now what do you see on your screen? अच्छा, टाइप योर क्लास कोड आ रहा होगा, है ना? अजय वो देना वाईफाई यार। अब मैं आपको क्लास कोड दे रहा हूं, ठीक है? आपने वो टाइप कर देना है। क्लास कोड क्या है? DGJ27246। स्टेप नंबर 2 हो गया ये पासवर्ड। ठीक है, ये वाईफाई का यूजर नेम है और पासवर्ड है। वो फिर ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, चलो ठीक है मैं लिख देता हूँ। Online students, you don't have to look at this space. Here I'm writing user ID and password for offline candidates who want to appear for this test, but they're not able to access their internet. So we are just writing here Wi-Fi password and user for them. Okay, user ID for them. User ID है आपका act and password था Dinesh at 123. Okay. ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ये देखने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा भी नहीं है ऐसे देख के इसको, ठीक है? हमने तो यही देखना है। हाँ, DGJ27246। Done with this second step. Now what do you see on your screens? हाँ, नेम। अब आपको क्या करना है? You have to add your name. Check if you can add your name. Added. Now what do you see? मिशन सोशियोलॉजी करके आ रहा होगा, उसको आपने प्रेस करना है। प्रेस दैट बटन, मिशन सोशियोलॉजी। नाउ डू यू सी द लॉन्च बटन? ठीक है, अभी आपको प्रेस नहीं करना है। ओके, until I ask you to press the launch button, you don't press it. If all of you are on the same page now, mission sociology, and if you see launch page, you say yes, then I'll ask you to press the launch button. Online students, yes? Fine. Chalo, theek hai. Now you press the launch button, you have 10 questions, 45 seconds for each question. All the best. कोई भी नेम पिक कर लो, यहाँ पे आरती पिक कर लो, नीचे जाओ। यस, डन।
Okay. So all of you went through those questions. Total 10 questions were there. Okay. Now, when you went through those questions, did you um, think for a second that what is the nature of these questions? In the sense, what is the subject about? Is it about understanding patterns, or is it about random things? Patterns. पैटर्न मतलब ये होता है तो अक्सर देखा गया ये होता है, पैटर्न्स. बट क्या है कि all of us have been part of society since forever, since our childhood, but we have never bothered enough to look back into our own society as something to be seen as a scientific entity. हमने कभी बॉदर नहीं किया ये समझना कि हमारा समाज भी, हम खुद अपने समाज को भी एक साइंटिफिक नजर से देख सकते हैं पैटर्न के फॉर्म्स में, कि उसमें जो बदलाव आ रहे हैं उसके पीछे क्या फोर्सेस हैं. अक्सर we take this world that we are living in for granted, and we look into stars and planets as if they are the only thing undergoing patterns or change in the patterns. So sociology as a subject हमें मजबूर करता है हमारी जिंदगी के अंदर पैटर्न्स ढूंढने के लिए. अच्छा, ये जो क्विज है इसमें अक्सर वी व्हाट वी डू इज whenever we complete any unit 1 2 3, we always make this a point that after completing the unit, before I ask you to write descriptive questions, or before I ask you to write answer writing on specific PYQs, what we also do is that we make students attempt such quiz, and this quiz helps them recall everything that they have learned in that unit. कल को यही इस तरह का जो पैटर्न है क्विज का, ये आपको हेल्प करेगा चीजों को याद रखने में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की खासियत होती है चाहे गलत हो जाए पर वो गलत भी हमें याद हो जाता है. ये चीज सब्जेक्टिव में नहीं होता. ऑब्जेक्टिव में गलती करने पे ज्यादा चीजें याद रहती हैं, एंड दिस इज मोर हेल्पफुल फॉर फैक्चुअल थिंग्स एक्चुअली. एंड दिस क्वेश्चन दैट आई गेव टू यू, दिस सेट ऑफ 11 क्वेश्चन वाज मेनली डिजाइन्ड टू help you more to understand what this subject is all about. So now Meenal, हाँ जी, show 45 more please. इनको क्या देखना है ना, we'll always talk about toppers, है ना यही होती है ना दुनिया, तो यही है unfortunately that we always talk about toppers. But anyway चलो देख लेते हैं इन लोगों को भी. अच्छा ठीक है, फाइन. नितेश, चहल, निखिल, आरजी, दुष्यंत, मैयर, आरती. आप अपना नाम ढूंढ रहे हो ना? नहीं, भाभी आ गई. ओके फाइन, ठीक है. Okay, so all those people who have scored 10 correct are given same rank. So competition आप देखो कितना strong है. आप देखो सेकेंड रैंक को ही शेयर करने वाले कितने लोग हो गए. सोच रहे हो आप कितना स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है. ओके, यानी many people knew 10 correct but only one knew 11 correct. ओके, एंड बात यहाँ पे ये नहीं कि हमें नंबर 1 रहना है. बात बस इतनी है कि हमें बस पता रहे कि what is required to have good rank, what is required to get good clarity on the things, whatever we study. And other than this, what I would also like to tell you about from our course is that जितने भी आपके पिछले 10-15 years के questions होते हैं, previous year questions, we make it a habit that we solve them in the class. By the time course is over, students are at least comfortable with their sociology part. The issue is that even in GS you will see this, that most of the courses in GS are running to complete the syllabus only, but they are not really completing syllabus with PYQ. And why PYQ is important? Because until you know PYQ, how do you know whether what you have read is relevant or not?
And knowing PYQ alone is not sufficient until you write them. And if you write them right after the class or while learning those concepts in the class, it is going to be more beneficial to you. Understood? So this is the whole point that I keep in my class कि आपको मेरी क्लास में टेस्ट देना कंपलसरी है, स्टूडेंट्स को टेस्ट देना ही पड़ता है. ओके, टोटल हमारे 6 टेस्ट होते हैं इन दी क्लास, 6 रिटन टेस्ट्स, जिसमें से वी हैव 4 सेक्शनल टेस्ट्स और 2 फुल लेंथ टेस्ट्स. क्या डिफरेंस होता है इसमें? जो सेक्शनल टेस्ट है ना, दैट इज मोर लाइक हाफ लेंथ टेस्ट. Suppose we have covered 3 units, 1, 2, 3. So the test 1 will be on these 3 units. Then we cover 4, 5, 6 units. Then the test 2 will be on 1, 2, 3 plus 4, 5, 6. That means tests are always going to be progressive in nature. ऐसा नहीं कि टेस्ट 2 में सिर्फ 4, 5, 6 है, 1, 2, 3 नहीं. 1, 2, 3 तो चलता ही रहेगा, आपके हर टेस्ट का पार्ट बना रहेगा. इस बहाने क्या होता है, पुराना भूलता नहीं इंसान, कम से कम रिवीजन उसकी कंटिन्यूड रहती है. वो इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हमें डर पता है किस चीज का होता है? इस चीज का नहीं कि दूसरे के पास ज्यादा कंटेंट है, इस चीज का कि जो हमारे पास था हम उतना भी भूल गए हैं. डर हमें उस चीज का है, दैट वी टेंड टू फॉरगेट व्हाटएवर वी हैव लर्नड, लेट अलोन रीडिंग दोस थिंग्स व्हिच आर रेड एक्स्ट्रा बाय अदर पीपल. So that should not be the case. So that means you should move forward, but you should also keep whatever you have left behind in mind, should keep note of that, and then move forward along with revision of whatever you have left backwards. Okay. So this is what the course structure is like. Okay. Now, if you have any question from your end, you may ask me before I talk about some other things. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चन आपका किसी भी टाइप का? यस. हाँ, तो ये इन्होंने पूछा है, इनका क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं. दैट इंडिया के अंदर तो प्रोस्पेरिटी बढ़ते जा रही है, पहले से भी, बिल्कुल, हमेशा से रिलीजियस भी रहा, सही बात है. तो क्वेश्चन ये है कि इंडियन सोसाइटी at one point of time was also called as सोने की चिड़िया, right? It was very wealthy at one point of time, but it was still very religious. But on the other hand, we have learned that most of the societies which are religious are more often than not those which are relatively poor, okay, or not having good economic development. Now see, remember one thing. Whenever sociologists give any law or database generalization, that is always limited to certain pockets. You will also notice one thing. Most of the people in India who have become very prosperous, they tend to forget their religious beliefs over a period of time. So although Indian society may become very prosperous, this does not mean that Indian society in itself will not be having any religiosity. You need to check population sample. आज भी इंडिया में we have more number of poor vis-a-vis rich people. आज भी जीडीपी भली बढ़ता जाए, इसका ये मतलब नहीं सब लोग अमीर हो गए हैं, समझ रहे हो ना? क्योंकि जीडीपी सिर्फ क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? प्रोडक्शन. इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन. जीडीपी किस चीज का इंडिकेटर होता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी अनइक्वल है, एंड अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन के मसले में कुछ लोग के पास बहुत ज्यादा है, यानी टाइनी माइनॉरिटी विल हैव ह्यूज स्वेथ्स ऑफ वेल्थ and vast majority will be relatively poor, and that is why you will still see people having more religiosity in India, because lot many are poorer with respect to few people who are super rich. Okay, so now understand one thing. Not every law that sociologists develop stands valid all the times. You will also see exception.
जैसे अंबानी है, अंबानी सुपर वेल्थी, बट ही इज ऑल्सो वेरी रिलीजियस एट द सेम टाइम. ओके, तो व्हाट डू वी डू? वी कॉल सच एग्जाम्पल्स एज डिविएशन फ्रॉम द पैटर्न. एक तो होता है पैटर्न और एक होता है डिविएशन फ्रॉम द पैटर्न, यानी कि एनॉमली. एनॉमली आप समझते हो ना? साइंटिस्ट भी क्या करते हैं? पैटर्न्स में एनॉमली ढूंढते हैं, यानी एक्सेप्शंस ढूंढते हैं. और एक होता है पैटर्न ढूंढना नॉर्मल. तो ट्रेंड एक होता है और एक होता है ऑफ शूट या फिर डिविएशन फ्रॉम द ट्रेंड. तो हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं कि यस देयर विल बी फ्यू केसेस व्हिच आर नॉट फिटिंग इनटू लॉ, बट दैट विल ऑलवेज बी सीन एज एक्सेप्शन टू द मेजर लॉ. हमें ये ध्यान रखना है. अच्छा, अगला क्वेश्चन है, सर एनी कोर्स फ्रॉम योर एंड टू गेट द कंपाइलेशन ऑफ करंट अफेयर रिलेटेड टू सोशियोलॉजी. ओके, विनय का ये क्वेश्चन हो गया है. Can science and religion go hand in hand? Like recently it was observed that ISRO scientists doing puja. Yes, very nice. बिल्कुल ऐसा भी होता है. हम ना आगे पढ़ेंगे ये सब चीजें. रिलीजन और साइंस, कॉमन सेंस में हम यूजुअली ये सोचते हैं साइंस इज ऑपोजिट टू रिलीजन. ओके, ये हमारा कॉमन सेंस है. बट जब हम स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बहुत डायनेमिक रिश्ता है. एक तो ये है साइंस अपोजिंग रिलीजन, और एक ये भी है साइंस प्रमोटिंग रिलीजन. ये भी होता है. जैसे कि टेलीविजन के आने से जो टेलीविजन शोज हैं ऑन कृष्ण, राम, महाभारत, वो और पॉपुलर हुए हैं. प्रिंटिंग प्रेस जब आया था इस दुनिया में, तो भगवत गीता और एंड मैनी सच रिलीजियस टेक्स्ट एक्चुअली बिकेम मोर एक्सेसिबल एंड मोर अफोर्डेबल टू कॉमन पीपल. दैट मीन्स टेक्नोलॉजी की हेल्प से लोग रिलीजियस ज्यादा भी हो सकते हैं. दोनों चीजें हैं, फाइन. बट हमको हमेशा एग्जाम्पल देने पड़ेंगे उस चीज के लिए, किस केस में ऐसा हो रहा है, किस केस में वैसा हो रहा है. ओके, और कभी कभी ये भी देखा गया है कि रिलीजन की हेल्प से, रिलीजन की हेल्प से, या फिर ऐसे बोलें रिलीजन ने खुद एक तरीके से साइंस को जस्टिफाई कर दिया. ऐसा भी हुआ है कि बाबा लोगों ने साइंस को प्रमोट किया. ओके, जैसे many spiritual gurus you will see actually talk about having what we call as scientific temper. Many spiritual gurus, and they justify their belief system with the help of science. That even in science there is this belief that we should have this kind of food, not this kind of food. There is scientific logic behind it. So many religious gurus also justify or promote science. ये भी होता है. तो यानी relation is not always one sided. That means whatever patterns we have to study all of them. Okay, but eventually have patterns here. There is no one pattern. There are multiple patterns, but there are patterns. Important वो है. Okay, so जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लाइट है, लाइट साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है ना. लाइट, इज इट अ वेव और इज इट अ पार्टिकल? दोनों है. कभी एक टाइम था माना था लाइट इज ओनली पार्टिकल, कभी एक टाइम था माना था लाइट इज ओनली वेव, फिर एक टाइम है लाइट दोनों है. समझ रहे हो आप? तो कहने का मतलब साइंस में भी कई सारे थ्योरीज हैं और एक दो थ्योरीज एक दूसरे को रिजेक्ट कर रहे होते हैं. ऐसे ही सोशियोलॉजी में होगा, कई थ्योरीज डेवलप होंगी और हर थ्योरी एक दूसरे को क्वेश्चन कर रही होगी. तो हमको बस ये समझना है दैट सोशियोलॉजी इज आल्सो स्टडी ऑफ सोसाइटी, स्टडी ऑफ सोसाइटी लाइक अ साइंटिफिक entity. We also have our own theories, we also have our own laws, and many a times theories and laws will be questioning each other. Does Einstein question Newton?
Yes, but still the physics students study both of them. वैसे ही हम भी पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स नाम का एक थिंकर है, डर्कहाइम नाम का एक थिंकर है, दोनों एक दूसरे को सवाल उठाते हैं, पर हमको दोनों पढ़ना है। समझ रहे हो आप? फेमिनिस्ट कार्ल मार्क्स को भी सवाल उठा देंगे, हमें फेमिनिस्ट भी पढ़ना पड़ेगा। तो थ्योरीज उधर भी है इधर भी है, वो नेचर को लेके है, ये समाज को लेकर है, इतना ही है बस। ओके फाइन। अच्छा, आरजी ने क्वेश्चंस को कंसोलिडेट कर दिया है ऊपर वाले बच्चों का भी। और could you explain how will you incorporate current affair in class discussions? Very simple. See, whenever we teach something, जो भी उससे रिलेटेड करंट डेवलपमेंट होती है, we always incorporate this in the class itself. कुछ भी डेवलपमेंट उससे हुई है रिलेटेड, तो उसको हम क्लास में ही इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे ड्यूरिंग कोविड टाइम्स व्हेन लॉकडाउन वाज इम्पोज्ड, तो यू विल बी सरप्राइज टू नो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो हमारा है इंडियन गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी actually conducted one trial. Do you know what was that trial? The Ministry of Science and Technology conducted efficacy of Gayatri Mantra on patients who have contracted coronavirus. Hard to believe ना, है ना? ये हिंदू में आया था कि गायत्री मंत्र का कितना हेल्प होता है उन लोगों पे जो कोविड के मरीज बने हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ने रिलीजियस बिलीफ्स का एक्सपेरिमेंट किया लोगों के ऊपर। इसका मतलब साइंस और रिलीजन ऑपोजिट है क्या एक दूसरे के? नहीं, इनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन भी हो सकता है, पैटर्न, है ना? तो ये क्या है? ये करंट अफेयर है। जब भी हम ऐसा कुछ पढ़ रहे हैं तो वहीं पे अपडेट कर दिया। कैसे इन दोनों के रिश्ते हमेशा ऑपोजिट नहीं है, एक दूसरे के यूनियन में भी होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं ये। ठीक है, तो इस तरह से जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं क्लास में, तो उसका करंट जो भी इंपॉर्टेंट होता है वो उसी टाइम हम कवर कर लेते हैं। ओके, सेकंड डिफरेंस बिटवीन योर क्रैश कोर्स एंड फाउंडेशन कोर्स। ओके, सी ऐसे सोचो आप, क्रैश कोर्स तो इज ऑब्वियसली फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी स्टडीड सोशियोलॉजी, है ना? तो क्रैश कोर्स में तो टारगेट ऑडियंस ही दूसरी, वहां पे कौन होते हैं? क्रैश कोर्स में वो लोग होते हैं जो मेंस दे रहे हैं, जो मेंस दे रहे हैं, मतलब वो कोर्स है ही उनके लिए जो मेंस दे रहे हैं। इसका मतलब जो दे रहे हैं और जो उम्मीद करें जो कि वो देंगे, उम्मीद अभी से नहीं कर रहे, 2 साल पहले से, उसी साल के प्रीलिम्स के बाद उम्मीद लगाई उन्होंने कि वो देंगे इसी साल। ठीक है, उनके लिए क्रैश कोर्स है। फाउंडेशन किसके लिए? फाउंडेशन होता है फॉर कंप्लीट बिगिनर्स हु हैव नो आइडिया और वो स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। ओके, तो ऑब्वियसली ऑडियंस अलग है, ऑब्जेक्टिव अलग है, और एंड ऑफ कोर्स ड्यूरेशन अलग है, वहां स्पीड भी अलग होगी मेरी। तो क्रैश कोर्स में मैं खुद ही 4x पे बोलता हूँ, बच्चों को -4x करना पड़ता है कंप्यूटर पे, बट फाउंडेशन में क्या होता है, मैं -4x होता हूँ, बच्चों को 4x करना पड़ता है ऑनलाइन में। ठीक है, क्योंकि मैं आई स्पीक वेरी स्लोली, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, आई स्पीक वेरी स्लोली। आज पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है शायद थोड़ा फास्ट है, बट मैं आपको बता दूं, बहुत स्लो बोलता हूँ मैं। ठीक है, तो स्पीड का फर्क होता है। फाउंडेशन टेक्स मी 5 months minimum to complete. Crash course, it takes me only 1.5 month to complete. Okay, in crash course one class is for 5 hours. ठीक है, in foundation it is only for 2.5 hours. ओके, तो वो डिफरेंस बहुत है क्योंकि टारगेट अलग है, ऑडियंस अलग है। थर्ड है, इस सोशियोलॉजी ऑप्शन सिलेबस इज डिफाइंड और देयर इज हिडन सिलेबस आल्सो रादर देन द सिलेबस गिवन बाय यूपीएससी। अब देखो, बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। प्रीलिम्स के अंदर, सोशियोलॉजी से हटके प्रीलिम्स की बात करते हैं, प्रीलिम्स के अंदर यू विल सी एवरी ईयर देयर इज अ क्वेश्चन ऑन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, है ना? इज बुद्धिज्म जैनिज्म रिटन इन द सिलेबस गिवन बाय यूपीएससी ऑन प्रीलिम्स? नो, लिखा नहीं है बुद्धिज्म जैनिज्म। ठीक है, लिखा नहीं है, ऐसे ब्रॉड हेडिंग्स दे रखी हैं, तो भी बुद्धिज्म जैनिज्म पूछ रहा है वो, क्योंकि भली दिया नहीं है तो भी पूछ रहा है।
इसका मतलब क्या है? सिलेबस इज नॉट व्हाट इज गिवन टू यू, सिलेबस इज व्हाट इज आस्क्ड टू यू। समझ रहे हो आप? सिलेबस वो नहीं है जो आपको दिया है यूपीएससी ने, सिलेबस वो है जो यूपीएससी पूछ रहा है। इसलिए जब लोग बोलते हैं सिलेबस याद करो, मुझे लाइन बहुत बोरिंग लगती है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं। सिलेबस में याद करने वाला क्या है? आई डोंट अंडरस्टैंड। ये जो लाइन होती है, जब तक सिलेबस याद नहीं होगा तब तक क्लियर नहीं होता, इररिलेवेंट पॉइंट। सिलेबस नहीं याद करना, क्या याद करना है? पीवाईक्यूज याद करने हैं। बिकॉज इफ यू रिमेंबर पीवाईक्यूज, your study will be very specific and you will know what is to be studied, what is not to be studied. And if you go only by syllabus, you may end up studying many things which are not asked by UPSC since 10 or 20 years. आप सिलेबस के हिसाब से चलोगे तो आपको मडीवल इंडिया के नाम पे मुगल सल्तनत सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप पीवाईक्यू के हिसाब से चलोगे तो आपको पता चलेगा कि मडीवल में तो सिर्फ 3 चीजें इंपॉर्टेंट है: विजयनगर एम्पायर, भक्ति, सूफी और कुछ मुगल एम्परर्स। लेकिन अगर सिलेबस से चलोगे तो कवर टू कवर सब पढ़ोगे। तो यानी पीवाईक्यू इज द सिलेबस, और वो सेम चीज एप्लीकेबल है टू सोशियोलॉजी। हमारी क्लास में सिलेबस इज नॉट व्हाट इज गिवन टू यू, सिलेबस इज व्हाट इज आस्क्ड बाय यूपीएससी। एंड देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर आस्क्ड बाय यूपीएससी व्हिच इज नॉट गिवन इन द सिलेबस ऑफ यूपीएससी, जिसको आप शायद हिडन सिलेबस बोल सकते हो अपनी लैंग्वेज में। तो वी एक्चुअली कवर ऑल दोस थिंग्स। इसलिए मैंने आपको बोलता हर क्लास के एंड में हम पीवाईक्यू कर रहे हैं, इसका मतलब कि जिसको भी हिडन सिलेबस बोला जाता होगा वो हम कर ही रहे हैं। तो इसके अलावा आपको कुछ करना भी नहीं है, ठीक है। Fourth, how much percentage of sociology UPSC syllabus will be covered in classes? Sir, sometimes I have seen 5 to 10% of official syllabus is not covered. हाँ, definitely. Again, I will not say syllabus. Syllabus तो पूरा कवर होता है जो दिया हुआ है। यूपीएससी जो पूछ रहा है वो पूरा कवर नहीं होता है। जो दे रखा है सिलेबस वो हम पूरा कवर करते हैं, बट जो पूछ रहा है यूपीएससी वो हम पूरा कवर नहीं करते हैं। उसका रीजन ये है, यूपीएससी ने बहुत क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। कब से हो रहा है यूपीएससी? बहुत सालों से हो रहा है, ठीक है। बहुत क्वेश्चंस पूछ रखे हैं अलग अलग टाइप के। तो कहने का मतलब है कि इन दी क्लास वी कांट सॉल्व all the questions which are asked by UPSC, but we can definitely solve most of the questions, at least which are repetitively asked, and some of those questions which are different from the repetitions. But we can't solve each and every different question because that will take away all of our time. But हम ये क्लास में जरूर encourage करते हैं कि you do practice on those questions on your own and bring those questions to me next day, and you can show those copies to me next day outside the class. I'll go through them, okay, instead of solving each and every question on the board, which is very impractical given the time constraints that we have. Will we get the strategy pack via email? Yes, all those students who are registered for this session, all of them will get the PDF of one aapka PYQ PDF that is given to you. Second, we'll be giving you syllabus copy. थर्ड वी विल बी गिविंग यू टॉपर्स कॉपीज। ओके, अच्छा, 2 टॉपर्स कॉपीज हमने आपको यहाँ पे दी हुई हैं सैंपल के लिए। वन ऑफ द टॉपर कॉपी इज दैट ऑफ प्रखर कुमार। ओके, प्रखर कुमार एक लास्ट ईयर का ही टॉपर है। ही गॉट रैंक 275, ठीक है। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट हिम? द बेस्ट थिंग अबाउट हिम विच आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट, आई मीन आई कैन टॉक अबाउट 2 डिजिट रैंकर्स ऑल्सो, बट मेरे को इसके बारे में पहले ज्यादा बोलना है। उसका रीजन ये है, this guy has scored in sociology 295 marks. 295. Okay. And in 295 marks out of 500, in paper 1, he got 160 marks, which is highest, last year's highest. 160 marks in paper 1. Okay. In paper 2 में 135. अब मैं अपनी क्लास में ये एक चीज एक्सरसाइज करवाता हूं बच्चों को। टॉपर्स की कॉपीज उनको दी जाती है,
after a point of time, and I asked them to go back home and understand what is so special in all of these copies that all of them have gotten selected. It is their homework. Okay. एंड व्हेन दे एक्चुअली, उसका रिजल्ट मैं आपको भी अभी से नहीं बताना चाहता हूँ कि वो क्या डिस्कवर करते हैं बाद में, बट आपको एक ब्रीफ आइडिया मैं दे दूं। राइटिंग सबकी अलग होती है, कंटेंट सबका अलग होता है, वोकैबुलरी सबकी अलग होती है, स्टार्टिंग पॉइंट सबका अलग होता है, कंक्लूजन सबका अलग होता है। तो भी सबके नंबर जो सिलेक्टेड हैं वो इतने अच्छे क्यों होते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाए? कुछ कॉमन है उनमें, भले ही बाकी सब चीजें अलग हैं, लेकिन कुछ कॉमन है उनमें। वो कॉमन क्या है, वही ढूंढना एक्सरसाइज होती है बच्चों की। दैट यू हैव टू फाइंड मी दोज कॉमन थिंग्स which are there in all these seemingly different copies। और वो कॉमन चीज क्या ढूंढ के लाते हैं वो मैं अभी आपको नहीं बोलूंगा, ठीक है? वो आपका एक ब्रॉड नजरिया जब डेवलप होता है पढ़ाई करके, वो तब जवाब आता है। पहले से मैं बोल दूंगा ना तो वो क्रिटिकल थिंकिंग जो मैं हमेशा फोकस करता हूँ आपके अंदर रहनी चाहिए, वो डेवलप नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है, डू नॉट एवर गेट कैरीड अवे बाय समवन हु वुड टेल यू कंक्लूजन रटना पड़ेगा। भाई कंक्लूजन रेडी करके जाओ। अगर कंक्लूजन रेडी करके ही सिलेक्शन होता, सबका कंक्लूजन सेम होता कि नहीं? फिर सारे सिलेक्टेड लोगों का कोई एक कंक्लूजन है जो आपको अच्छे नंबर दिलाए? नहीं होता ऐसा कुछ भी। सब, आई ऑलवेज से, if 900 students are selected, that means 900 strategies are selected. There is no one strategy. Every person who gets selected becomes a strategy in himself. But it is not implying by any chance that you start emulating that strategy. You just have to trust your own path that you are following, because you never know, the path that you are following may end up becoming a strategy for many of those who will later on follow you. Okay, तो आपको अपने जो आप पढ़ते हो उस पर भरोसा रखना होता है, इंपॉर्टेंट वो है। और वो भरोसा डेवलप होता है जैसे जैसे आप यूपीएससी के पीवाईक्यू सॉल्व करते जाते हो और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते जाते हो। इसके अलावा और कोई चीज से भरोसा नहीं आ सकता, ठीक है? सो पेपर वन में ही गॉट 160 मार्क्स, विच इज हाईएस्ट पेपर टू 135। You will notice one thing, that in his answers, which we will be uploading for online students as well, you will notice one thing in his answers, visibility is super strong। visibility, आपकी आंखों में ना आ रहा होगा आंसर ऐसे। एक लाइन में हमेशा बोलता हूं, सेकंड फ्लोर से एग्जामिनर ने बोल दिया होगा सिलेक्टेड है ये, सेकंड फ्लोर से, ठीक है? वो उतरा ही नहीं होगा नीचे कॉपी चेक करने के लिए। कुछ आंसर ऐसे होते हैं, ऊपर से देख के बोल दो इसको आता है। वो परसेप्शन अगर आपको फील हो रहा है, ट्रस्ट मी एग्जामिनर्स को भी फील होता है। दैट मीन्स प्रेजेंटेशन डज मैटर, इट डज मैटर। एंड you will also notice one more thing, none of these two students have filled their pages left and right, top to bottom. They have given enough spacing in between their answers। वो भी आप नोटिस करोगे, स्पेसिंग भी है, ऐसा नहीं पूरा भर भर के लिखा हुआ है। ये भी आप नोटिस करोगे that they have not written long paragraphs, they have written very short paragraph। तो कुछ चीजें जो आप ऑब्जर्व करोगे कल को, बट वो ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग आपकी तब होगी जब पहले आप खुद गलतियां करोगे। गलतियों से ही हम ज्यादा सीखते हैं, और दूसरे की नहीं, अपनी ही गलतियों से सीखते हैं। चाहे दूसरा चाहे जितना मर्जी बोल दे, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, ठीक है? सो दिस इज अबाउट प्रखर, एंड सेम इज द केस विद वर्धन। मैं इधर कॉपीज, बट हमने आपको दो ही दिए फॉर द टाइमिंग। दिस ईयर the students who have appeared for interview, approximately 110 students from our course are appearing for interview, and out of those 110, in my foundation course I gave approximately, in the last foundation that I taught, I gave approximately 15 copies of those students who were actually getting best rank even in our crash course. That means most of the students who got best ranks in our crash course
they were actually found as good copies even by those senior examiner. That means there is something which they are finding which is required for any student to get high score, something which we also find as the base for any student to get high score. So that means our criteria that we have and the criteria that the examiners have are almost common, which is visibility. When we came to know that these people have gotten selected through mains and appearing for interview, the first thing that we did was to skim through those copies कि इन copies में ऐसा क्या है common. हमको पता चला common यही सब है जिसकी बात मैंने अभी आपसे करी. Short paragraphs, high visibility, and very nice presentation. Many people, you will be surprised to know, are not even writing long sentences, they are just making flow charts. ये भी आप notice करोगे. They are boxing their points and then they are somehow making some arrows, and those arrows are then redirected towards another arrow. That is how they are writing their stuff. And is this a conscious strategy which they have developed? No. If you do this consciously, you may end up losing marks. How then you start doing it unconsciously? Over a period of time, you understand that you can't write everything in the given time, and you will have to naturally develop this tendency of making flowchart. That is what we call as unconscious plan. But अगर conscious बोले ये मैं जबरदस्ती सोच लिया मैंने कि आज मेरे को flowchart बनाना है, तब गड़बड़ होगी. यानी कुछ चीजें राइटिंग के दौरान ही आप सीखोगे, चाहे आपको पहले से पता हो, वो राइटिंग के दौरान ही आप सीखोगे. Okay, so this is what I wanted to share with you. So I guess I addressed most of your questions. अच्छा ये और नीचे questions हैं. So will we get recording of the lectures? Yes, Anushka. Online students get recording of the lectures. That recording, like for example, if I took one class today, the recording of that class will be available for total 3 days. One to is today, second is tomorrow, and third day is day after tomorrow. For 3 days, the recording is available, but it is not available from the 4th day onwards. However, if you by chance fall ill, or if you have any sort of issue, personal issue, and you skipped that class, you can easily get access to that class once again. But उसको हम बोलेंगे नहीं शुरू से ही कि आप टेंशन मत लो, जो भी क्लास मिस होगी आपकी, आपको सबकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. हम ऐसे नहीं बोलते हैं क्योंकि बच्चे फिर मिस ही करते हैं क्लास, ये सोच के कि रिकॉर्डिंग तो है ही. इसलिए हम अपनी वेबसाइट पे भी साफ लिखा हुआ है, रिकॉर्डिंग सिर्फ 2 दिन के लिए एक्स्ट्रा मिलती है अदर देन दैट डे जिसमें क्लास हुई है. बाकी ये मिस हो जाए तो ऑफ कोर्स सब बच्चों को वो एक्सेस मिलता ही है, क्योंकि ये तो किसी को नहीं पता होता कब कोई बीमार होगा, राइट? किसी के कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं. और क्वेश्चन है दूसरा आपका, is there any need to join crash course after foundation or foundation is enough? देखो मैं आपको बताता हूँ, जिसने फाउंडेशन किया है उसका बेसिक्स से लेकर एडवांस विद पीवाईक्यू सब कवर्ड है. उस आदमी को क्रैश कोर्स की कोई जरूरत नहीं है. अगर वो तो भी क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर रहा है तो सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि उसको जल्दी रिवाइज करना है, जो वो शायद खुद से ना कर पाए. अदरवाइज उसको जरूरत नहीं है क्रैश कोर्स की. तो पीपल एंड अप एनरोलिंग फॉर क्रैश कोर्स डिस्पाइट not all the people enroll for crash course. Only those appear for crash course who want to quickly complete the syllabus along with the classes that we take. तो होता है, सबका रीजन वही होता है कि चलो कोचिंग माने स्पीड अप हो जाएगा, और वही रीजन क्रैश कोर्स में एप्लीकेबल है. ओके. Was Vardha ma'am in crash course or foundation course? Vardha ma'am is part of our foundation course. Vardha ma'am ने हमारे साथ enroll किया था last year, और उनका ये second attempt था. फर्स्ट अटेम्प्ट में शी वाज नॉट पार्ट ऑफ फाउंडेशन कोर्स, सेकंड अटेम्प्ट में उन्होंने फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया था. पहले अटेम्प्ट में उनकी सेल्फ स्टडी थी. ओके. एंड बाद में उन्होंने क्रैश कोर्स भी किया था. फिर PYQs आर नॉट रिपीटेड इन सोशियोलॉजी, राइट? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. नो, यू आर रॉन्ग. PYQs आर रिपीटेड. ऐसा कैसे हो सकता है? PYQs रिपीट नहीं होंगे तो फिर तो भाई कैसे चलेगा लाइफ? ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है यूपीएससी में जिसमें PYQs रिपीट नहीं होते. ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है. एंड इनफैक्ट मैं आपको बताऊं एक चीज, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो,
इस बार के पेपर में सारे क्वेश्चंस हमारे टेस्ट सीरीज से आए, और हमारे टेस्ट सीरीज में सारे क्वेश्चंस कहां से थे पता है? पीवाईक्यू से। अब बच्चे बोलेंगे कि यहाँ के टेस्ट सीरीज से आए, पर बच्चे जो स्मार्ट होते हैं वो इनको वो भी ये भी जानते हैं अच्छे से कि वो खुद भी पीवाईक्यू से ही है। इस बार का एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है सोशियोलॉजी में, एक बोलूंगा सिर्फ एक क्वेश्चन है, बट बाकी सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू है। प्रॉब्लम पता है क्या है? सबको पता चल भी जाए पीवाईक्यू से आ रहा है, तो भी सबके नंबर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उनको ये तो पता है ये पीवाईक्यू है, बट उनको ये नहीं पता कि आंसर क्या है। ठीक है, और कभी कभी उनको ये भी पता चल जाए आंसर ये है, बट उनको ये नहीं पता चलता कि ये आंसर नहीं है, नोट्स है। देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन नोट्स एंड आंसर, एंड ये भी एक पॉइंट है जो आप एक पॉइंट के बाद रियलाइज करोगे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नोट्स एंड आंसर। मोर ऑफन देन नॉट we try to reproduce whatever we have studied, and we forget examiner there is looking for only answer. एंड ये हमारे जितने बड़े बड़े स्कूल के प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स, टीचर्स, सीनियर कॉलेज के प्रोफेसर्स, एचओडी, सब ने एक ही चीज बोली है। मैं खुद भी ना, एग्जामिनेशन एज अ प्रोसेस मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एज अ प्रोसेस। मैं ये नहीं देखता उसका नतीजा क्या होएगा। एज अ प्रोसेस मेरे को बड़ा काफी इंट्यूटिव फीलिंग आती है जानने के लिए कि कैसे ही कंडक्ट होता है। तो इसके आंसर जो होता है हमेशा कि एग्जामिनर क्या देखते हैं, उसका आंसर कभी कभी खुद भी मिल जाता है जब आप खुद एग्जामिनर बनते हो। समझ आ जाता है कि वहां पे क्या देखा जाता है। तो तब जो जितने टीचर्स होते थे सीनियर, और जितने कॉलेज के प्रोफेसर एचओडी होते थे, जो वो बोलते थे, सब ये ध्यान आ जाता है, अच्छा वो ऐसा क्यों बोलते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर राइटिंग नोट्स, और एग्जामिनर जो होते हैं उनको चाहिए हमने तो ये पूछा था, ये इतना कुछ क्यों लिख रहा है, वेयर इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। वो हमेशा आंसर ढूंढ रहे होते हैं, वो उनको मिलता नहीं, तब जाके नंबर कम हो जाते हैं। सो वी डोंट हैव टू फ्लड आवर आंसर विद नोट्स, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, so will toppers be there to help in sociology optional classes? Yes, toppers have been there. Even in our last class, foundation class, we have conducted session with toppers. जैसे कि वर्धक आई थी, प्रखर आया था, हेमंत, आई गेस आपको शायद पता हो, हेमंत पारीक। He was a student from, he was a person whose mother was in Narega, and he, despite all those financial struggles, managed to get through this exam. And you will be surprised to know that he's coming from such a humble background. He is a representative of all those people who have high ambitions, but they are fearful of making decisions because they feel that they don't speak good enough English or they don't write good enough English. So why should we dream this? Now, there is a person called as Hemant. Now, his command on language is not as good as you would expect from any candidate who would get selected, but his selection clearly shows that language does not matter. What matters is whether you are able to convey your point to the examiner or not. तो एग्जामिनर वहां पे is, the, they, of, ग्रामर जो है ये सब नहीं देख रहे, वो सिर्फ देख रहे हैं मुद्दे की बात करी कि नहीं। तो कभी कभी गलत ग्रामेटिकल सेंटेंस भी सही जवाब हो सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर वहां पे ग्रामर वैसे ही चेक नहीं कर रहा, उसको सिर्फ आंसर चाहिए, और वो इतना एग्जामिनर समझ जाता है, इतना लीवे सब बच्चों को मिलता है। ओके, तो इसलिए सारे जितने भी कैंडिडेट्स रहे हैं टॉपर्स, सलोनी छाबड़ा, ठीक है, उसके साथ भी हमारा सेशन हुआ था लास्ट ईयर। तो हम हर स्टूडेंट्स को जो भी अलग अलग स्ट्रेटा से हैं, चाहे वो गुड़गांव से हैं, चाहे वो किसी और एरिया से हों, चाहे वो किसी और सिटी से हों, उन सब के साथ सेशन हम टाइमली करते रहते हैं, ताकि ना आपको पता रहे कि कितना करना सफिशिएंट रहता है। ओके, वैल्यू एडिशन कुछ नहीं होता, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, इट इज वेरी रिलेटिव थिंग। सी, what is value addition to A could be basic to B. What is basic to A could be value addition to B. Most of the things that we study in the class are actually, in my language, very basic. But to many students, it will be value addition. But मेरे लिए वो basic ही है. Okay.
एंड कुछ और स्टूडेंट्स के लिए वो बेसिक ही रहेगा अगर उन्होंने वो पूरा किया हुआ है, बट जिन्होंने नहीं किया उनके लिए वो वैल्यू एडिशन हमेशा रहेगा। तो आपको ये सोचना ही नहीं कि वैल्यू एडिशन कुछ अलग होता है जो हमें बाद में करना होता है, नहीं। वो जो भी होता है उसको मैं पढ़ाते टाइम बोलता भी नहीं हूँ कि ये वैल्यू एडिशन, इसको अलग से लिखना। वो तो बस पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाता है विदाउट कैटेगराइजिंग दिस एज बेसिक एंड इसको वैल्यू एडिशन लिखो, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलता। सब कुछ जो हम पढ़ रहे हैं वो बेसिक है और वही वैल्यू एडेड है। ओके So a small note for the team, please make the video quality better, looks more like Ghibli art. For now, I really want to join the foundation course, but the quality has to be way better for the क्या कहते हैं cost paid. यार एक तो आपने नाम भी इतना खतरनाक रखा हुआ यूपीएससी B1 2024. Definitely UPSC will take this into consideration, and trust me, video quality is going to be very nice. लाइव स्ट्रीम आज वाले में शायद इशू आया है, बट आई थिंक लास्ट वाले में इशू नहीं था। तो आज कुछ हुआ होगा टेक्निकल ग्लिच, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी फ्रॉम द साइड ऑफ टेक्निकल टीम। बट वीडियो क्वालिटी में कोई इशू नहीं आता है। यू कैन कंप्लीटली रिलाई ऑन दिस ऑन द एडमिन टीम। Exactly, the whole session was blurry. Okay. So, what books will be required? Will you provide study material? Yes. So, see, हम study material क्या देते हैं? उसका एक्चुअली सैंपल हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड भी कर देंगे। एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स जिनको भी कलेक्ट करना होगा कुछ सैंपल हमारे स्टडी मटेरियल का, वो आप कल से कलेक्ट भी कर सकते हो। हमारा जो पीडीएफ होता है हैंडआउट का जो हम देते हैं अलोंग विद प्रिंट आउट, वो हैंडआउट बहुत ही, जिसे कहते हैं, विजुअली अपीलिंग होता है। ये मैं आपको बता रहा हूं, आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे लिए विजुअल इज ऑलवेज अ प्रायोरिटी। ओके, हालांकि वीडियो क्वालिटी खराब आई, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, वो एक अलग चीज है, लेकिन ऐसे विजुअल जो होता है ना, मेरे लिए हमेशा एक प्रायोरिटी रहता है कि यार देखने में जो चीज हो वो अच्छी लगे, चाहे वो हैंड आउट ही हो। मतलब ऐसा ना हो कि पढ़ के इंसान बोर हो जाए कि ये क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट, पैरा पैरा पैरा। ओके, मेरे को वो नहीं अच्छा लगता। मैं चाहता हूँ आप जब पढ़ो आपको ना मजा आए पढ़ने में, आपको पढ़ाई से प्यार हो। ओके, और इसीलिए जो हमारे हैंड आउट होते हैं उसके अंदर यू विल सी मैनी diagrams, many flow charts, many tables, and little bit of text, जिससे आप हमेशा कनेक्टेड फील करते हो। क्लास में भी हम यही करते हैं। हैंडआउट्स अक्सर बच्चों को हम देते हैं, लेकिन ना इवेंचुअली बच्चे जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं उसी पे रिलाई करते हैं। रीजन क्या होता है? जो चीज आपने पढ़ी है एवरीडे बेसिस पे, जो चीज आपने लिखी है अपने हाथों से एवरीडे बेसिस पे, जिस चीज को पढ़ पढ़ के आपने टेस्ट दिया है, आपका रिश्ता बन जाता है उस चीज से। और वो रिश्ता आप उससे नहीं बना पाते जो आपको क्लास के एंड में ऐसे बांटा था। ठीक है, वो रिश्ता उसके साथ बन नहीं पाता। तो वो भली देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि यार मेरे वाला ज्यादा आसान है। ठीक है, जो मैंने बनाया है। ये होएगा, आपके साथ भी होएगा, हर बैच में यही होता है। ओके, सो बट यस, टू आंसर योर क्वेश्चन, यस वी डू गिव हैंडआउट्स। ओके, बट वी डोंट गिव हैंडआउट्स फॉर पेपर 2। पेपर 1 के लिए वी डू गिव हैंडआउट्स, पेपर 2 के लिए देयर आर नो हैंडआउट्स। पेपर 2 में जो भी हम पढ़ते हैं, इनफैक्ट इवन फॉर पेपर 1 व्हाटएवर वी स्टडी दैट इज सफिशिएंट। सो हैंडआउट्स 1 के लिए है, 2 के लिए नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है वायु ने, that why don't we provide hard copy material to the online students as well? Please start this initiative, would be of great help to us. देखो, इसका रीजन बताता हूँ मैं आपको क्या है। हालांकि आपको रीजन कुछ ज्यादा मजेदार नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, रीजन ये है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कोरियर करना पड़ेगा हमें। ओके, यानी कि अब सी, हर बच्चा अलग अलग जगह में है हिंदुस्तान में, ठीक है। some person is there in northeast, some person is Gujarat, some person is from Tamil Nadu, right? Now, since Level Up IAS as an institute does not have any courier service, it has never couriered, there is no postal course available, although you can say that they can easily courier, okay,
The issue is that they will set a precedent if they start couriering the handout. Until they make it part of their what we call as administrative initiatives, we don't do courier. What we do is provide students online copies, and they can take printout of them at their convenience from their nearby shop, which is convenient to both of us. Okay, so बजाय कि हम यहाँ से कोरियर करें, क्योंकि उतना ही कॉपी जब हम कोरियर करेंगे, दूसरा रीजन मैं आपको बताता हूँ कोरियर ना करने का, we give handouts after every unit. Okay, that means they will have to courier after every unit. On the other hand, if you take a printout after every unit, that will be always more convenient. So convenience यहाँ पे सबसे बड़ा issue बन जाता है. That is why we have not started any such initiative. However, by the end of next month, अभी अप्रैल चल रहा है, मई में, or by the second week of next month, we'll be launching one book. एक बुक हम लॉन्च करेंगे सोशियोलॉजी की. वो बुक, that book is going to help you a lot. It is more like compilation of handouts only, okay, that we give in the class, but थोड़ा सा refined form है क्योंकि वो एक book के तौर पे बनने जा रहा है. तो that book will be available to all the students on Amazon as well. तो that can save you lot of time, बजाय कि आप प्रिंट आउट हमेशा लो, आप बुक को भी सीधा गो थ्रू कर सकते हो. तो you have many options before you, but कोरियर ना करने का रीजन तो मैंने आपको बता दिया है. Sir, should we rely only on the book or handout? See, as I told you, book तो क्या है? Compilation of all the handouts that we give in the class. The only difference is कि उस book में थोड़ा सा विजुअल और रेफरेंसेस और टेक्स्ट स्टाइल फॉर्मेटिंग थोड़ी अलग होगी, क्योंकि जब बुक बनाते हैं तो थोड़ा अलग स्टाइल होता है, हैंडआउट बनाना थोड़ा सा अलग स्टाइल होता है. तो प्रेजेंटेशन का फर्क होगा, कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम होएगा. ओके, तो इट इज अप टू यू. हालांकि मैं तो आपको ना बुक बोलूंगा पढ़ने के लिए, ऑनेस्टली आपको बताऊं, भली मेरी बुक है तो भी मैं आपको नहीं बोलूंगा पढ़ो उसको, ना मैं आपको बोलूंगा हैंडआउट पढ़ो जो हम देंगे. जैसे मैंने आपको बोला, आप क्लास नोट्स जो हम बना रहे हैं, आप उसी को पढ़ोगे, कई बार पढ़ोगे. ना आप मेरी बुक खरीदोगे, ना आप जो हैंडआउट हम दे रहे हैं आप उसको पढ़ोगे. ये हम सब कर रहे हैं फॉर्मेलिटी के लिए, मैं आपको बता दूं. ये सिर्फ फॉर्मेलिटी होगी हमारी तरफ से कि हमको एक आपको स्टडी मटेरियल देना है, बट आपने पढ़ना किसको है? जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं उसी को. और सफिशिएंट होगा वो कि नहीं, एक ये सवाल होता है. वो होगा तभी हम टाइम ले रहे हैं. इनफैक्ट हम टाइम जो लेते हैं ना इतना, 5 months या 5.5 months, वो इसलिए लेते हैं क्योंकि हम पढ़ते इतना कुछ है. नहीं तो कोर्स हम 4.5 month में जल्दी खत्म कर सकते हैं, हमारा ही फायदा होगा जल्दी खत्म करने, बट वो हम नहीं करते. क्योंकि हमें ना हमारा फायदा तभी दिखेगा जब आपका फायदा हो, और आपका फायदा तब होएगा जब आपका अच्छा सिलेक्शन हो, अच्छा रैंक हो. वो तब होता है जब आपने कंप्लीट पढ़ा हो, उसमें टाइम लगता ही है हमेशा. अच्छा, तो इनका क्वेश्चन है कि डिजिटल नोट्स बनाएं या फिर जो हम हैंड रिटन करते हैं. इट इज अप टू यू, डजंट मैटर. सम पीपल हैव मेड डिजिटल नोट्स, some people are comfortable with manual handwritten notes. The advantage with digital note is that you can edit it later at your convenience. You can add things, you can subtract things. This is not the same advantage that you get with manual handwritten notes. वहां पे आपको स्ट्राइक करना पड़ेगा, शायद उतना क्लीन ना लगे आपको अपना नोट, चीजें फिट इन करनी पड़ेगी या लूज शीट्स में लिखना पड़ेगा, तो जो आपको कन्वीनियंट लगे, कहने का मतलब वो है. ओके, जैसे आई रिमेंबर वर्धा यूज्ड टू मेक डिजिटल नोट्स. ओके, बट द अदर पर्सन प्रखर ही मेड हैंड रिटन नोट्स. तो सबके अपने तरीके, दोनों इक्वली सक्सेसफुल हैं. सर, इन ऑनलाइन लाइव क्लासेस ग्रीन और ब्लैक बोर्ड विल नॉट शेयर सेपरेटली टू ऑनलाइन लाइव स्टूडेंट. मेरे को समझ नहीं आएगी. इन ऑनलाइन लाइव क्लास ग्रीन और ब्लैक बोर्ड विल नॉट शेयर सेपरेटली टू ऑनलाइन लाइव स्टूडेंट्स. देखो, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया आपका, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा इसको आंसर करने के लिए. ये जो बोर्ड आपको ग्रीन दिख रहा है, ये ब्लैक भी हो सकता है. ठीक है, कलर चेंज करने का ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पर. ओके,
और ये कलर चेंज होता है इधर से, ठीक है, और इधर होएगा शायद, क्या कह रहे हैं, यहीं पे है कहीं कलर का ऑप्शन। हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा, देखो, ये देखो व्हाइट हो गया। अलग अलग कलर्स हैं इसमें। um, अच्छा, so what separates an aspirant scoring in 310 range from someone scoring in the 220 range even when both student study the same syllabus? मैं आपको बड़ा सिंपल सा आंसर देता हूँ इसका। इन्होंने क्या सवाल पूछा, आखिर में 310 वाले बच्चे को क्या अलग कर देता है 220 वाले से, जबकि दोनों एक ही चीज पढ़ रहे हैं? मैं आपको एक चीज बताऊं, जो हमारी पहली क्लास होगी ना, पहली क्लास से लेकर थर्ड यूनिट तक, फर्स्ट टू थर्ड यूनिट, once we complete this we will have test 1, all of you will be studying the same unit 1 to 3, but हाईएस्ट किसका, किसी एक का ही होएगा। समझ रहे हो आप? सब ने एक चीज पढ़ी होगी, यूनिट 1 टू 3 मेरे साथ सबने एक ही चीज पढ़ी होगी, लेकिन हाईएस्ट किसी एक का ही होएगा और कोई ना कोई बॉटम पे होगा। अब सवाल पूछा जाएगा क्यों ऐसा हुआ? ये इनएविटेबल है, ये लॉ है समाज का, ये समाज का लॉ है। मेरिटोक्रेसी ब्रिंग्स इनइक्वालिटी, the only difference is this inequality is competitive in nature. That means the person who's scoring bottom tomorrow can become ranker, but it is competitive. That means he will compete and he can get extra score. इनइक्वालिटी पहले भी थी, इनइक्वालिटी आज भी है, पर पहले बाय बर्थ थी, आज बाय मेरिट है। तो जब हम बोलते हैं 310 वाले को अलग क्या करे 220 से, सिर्फ मेरिट, उसकी मेहनत, पढ़ सब एक रहे हैं लेकिन रिप्रोड्यूस सब एक नहीं करते। अगर आप सब लोग लक्ष्मीकांत पढ़ लो और पॉलिटी का टेस्ट दो, क्या सबके एक नंबर आएंगे? सबके अलग आएंगे, क्योंकि रिप्रोड्यूस सब एक नहीं कर पा रहे। डिफरेंस उधर है। यानी कि आखिर में सक्सेस जो है वो किस में है? रिवीजन में। मैं हमेशा बोलता हूं, इंस्टेड ऑफ रीडिंग 10 बुक्स एंड रिवाइजिंग देम ओनली वंस, रीड वन बुक, रिवाइज इट 10 टाइम्स। आपका स्कोर ज्यादा तब आएगा जब आप एक चीज को 10 बार पढ़ो, बजाय कि आप 10 चीज को एक भी बार ना पढ़ पाओ पूरा। ठीक है, तो ये है रीजन। वायु आपको आई होप क्लियर हो गया? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट डेफिनेटली, क्यों नहीं, आंसर कॉपी तो सबकी वैल्यूट होती है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स की क्यों नहीं होगी? सबकी होगी यार। ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टूडेंट्स में कोई फर्क नहीं है, देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। ओके, बस एक ही फर्क है, वीडियो क्वालिटी का इशू आ सकता है। ठीक है, आता नहीं है, जैसे आज आ गया, ये मैंने थोड़ा ना प्लान किया था कि आज वीडियो क्वालिटी खराब करूंगा मैं। ठीक है, आज आ गया, ऐसा इशू ऑफलाइन में नहीं आता। बाकी देर इज नो डिफरेंस, इंटरेक्शन हमारा कॉमन रहता है। मतलब आई लव इंटरेक्शन, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। मेरे लिए क्वेश्चन इज मोर इंपॉर्टेंट, चाहे वो ऑनलाइन से आए चाहे ऑफलाइन से आए। ओके, इन्वॉल्वमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट, चाहे वो ऑनलाइन का हो ऑफलाइन का हो। ठीक है, सो सर आप क्लास नोट्स भी बनवाओगे, मतलब डिक्टेशन? हाँ यार, डिक्टेशन मैं दूंगा आपको। क्यों दूंगा मैं आपको? जब तक आप खुद से लिखोगे नहीं ना, तब तक वो इधर जाएगा भी नहीं। मतलब एक तो होता है चीजें ब्रेन में जाना और एक होता है माइंड में जाना, इन दोनों में फर्क है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वो चीजें आपके ब्रेन में होंगी, बट जब आप लिखोगे ना वो आपके माइंड में भी जाती जाएंगी। यानी आप उसको इंटरनलाइज करोगे, लिखते लिखते आप खुद नोटिस करोगे, हाँ ओके अच्छा। वो लिखते लिखते आपको मूवमेंट आएगा, वो शायद वो पढ़ के भी आ सकता है, लेकिन सिर्फ पढ़ के नहीं आता, कंप्लीट तभी होता है जब आप लिखो। तो लिखना इज इंपॉर्टेंट, बट डिक्टेशन का जो हमारा एलिमेंट होता है क्लास में, मैं आपको बताऊं,
if the class is running for 2.5 hours, dictation maximum 45 minutes का होता है, बाकी we do discuss. It is mostly interactive, discussion oriented, interaction oriented. डिक्टेशन इज हार्डली 25% ऑफ द क्लास, और जो कि वो ऐसा पार्ट है जिसको मैं कभी स्किप नहीं कर सकता. मतलब like I was discussing with my colleagues also other subjects, one of my colleague told me कि सर डिक्टेशन रहने देते हैं, क्योंकि बच्चों को लगता है कि ये तो मिल ही जाएगा. ओके मैंने तो भी बोला नहीं, तो भी नहीं रहने देंगे, क्योंकि अपना लिखा हुआ वर्सेस दूसरे के लिखे हुए में हमेशा फर्क रहता है. आप किसी और का डिक्टेटेड पढ़ लोगे, और जबकि अपना खुद का लिखा हुआ जो होता है उससे हमेशा याद रहेगा आपको. फर्क होता है बहुत ज्यादा. तो खुद से लिखना इज नॉट जस्ट अबाउट योर कन्वीनियंस, इट इज ऑल्सो अबाउट व्हाट वी कॉल एज कॉम्पिटिशन. क्योंकि आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हो, आपको पता होता है इस चीज को मैं हिंदी में लिख लेता हूँ अपने वर्ड में, यहाँ पे मेरे को याद रहेगा. ये चीज दूसरे के नोट्स में नहीं हो पाता. ओके सो ठीक है, आई गेस आई हैव एड्रेस्ड मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस. I also feel comfortable in dictation. हाँ बिल्कुल, and me too. I also feel comfortable in dictation. Can we follow topper notes? Definitely you can follow topper notes only after reading the basic things first. But you can't directly start referring topper notes and consider them as your chapter 1, chapter 2. Okay. जब आप कल को पढ़ोगे, आप अपने नोट्स बनाओगे, आप जब सेलेक्ट हो जाओगे, कल को लोग आपसे आपके नोट्स मांगेंगे, आप उसको शेयर करोगे. और अगर आपके लिखे हुए नोट्स दूसरे लोग आसानी से पढ़ पा रहे हैं, यानी कि वो नोट्स नहीं थे. सीधी सी बात है. नोट्स पता है कैसे होने चाहिए? नोट्स अगर मैं बना रहा हूं तो मेरे अलावा इस दुनिया में कोई ना समझ पाए. नोट्स वो होता है, और ये कॉन्शियसली प्लान नहीं किया जा सकता कि ऐसी राइटिंग अपनी गंदी करूं मैं कि कोई समझ ना पाए. ये कॉन्शियसली नहीं होता. ये होता है कि आप कंफर्ट में लिख रहे हो, बिना किसी कंसर्न के कल को कोई मेरे से मांगे थोड़ा अच्छा लिख लूं, ऐसा कुछ नहीं. आप फ्रीली लिख रहे हो, उसमें कुछ वर्ड्स अपनी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में भी आपने डाले हुए हैं. बट अगर आपके नोट्स पूरा वर्ड टू वर्ड है, दिस इज वन थिंग विच ऑनलाइन स्टूडेंट्स मस्ट बी अवेयर ऑफ, मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ, दैट जस्ट बिकॉज यू हैव कन्वीनियंस टू pause the video, go backward, watch it again, and read that thing which you missed, does not mean that you write everything that I'm talking about. ऑनलाइन में एक ही चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी है आपको, आपने हर एक चीज जो मैं बोल रहा हूं नहीं लिखनी. और वो ही नुकसान लगता है बस मुझे ऑनलाइन में. ऑफलाइन में क्या होता है, वो टाइम नहीं मिलेगा सब कुछ लिखने का, ना आप मुझे पॉज कर पाओगे, ना आप मुझे पीछे लेके जा पाओगे. तो आप ना क्लास के साथ फ्लो कर रहे होगे. ऑनलाइन में कन्वीनियंस हो जाती कि चलो मिस कर दिया तो देख लेंगे पीछे से. वो नुकसान एक्चुअली कर देता है, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट जो कि हर चीज लिख रहे हैं. बट एनीवे, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, नोट्स जो है आपके हमेशा ऐसे होने चाहिए, बहुत शॉर्ट प्रिसाइज. लॉन्ग है, सब लोग पढ़ पा रहे हैं, तो वो नोट्स नहीं है, उसको नोट्स होना अभी भी बाकी है. ठीक है. Is there any way online students can show you answers written or PYQ not discussed in class? Yes, definitely. In fact, when we begin the classes, so I give my email ID, and we have Telegram channel also. Through this email ID, online students can upload their answers. तो हम अपनी क्लास में जो भी हम करते हैं क्वेश्चंस, उसको स्टूडेंट्स को अपलोड करने के लिए हम ईमेल आईडी देते हैं. और अगर टेलीग्राम चैनल ओपन रखते हैं तो उधर भी बच्चे अपलोड करते हैं. दोनों जगह पे हम उन आंसर्स को गो थ्रू करते हैं. ओके. मेंटरशिप सेशन. अच्छा, तो वायु पूछ रहे हैं हाउ विल ऑनलाइन स्टूडेंट गेट मेंटरशिप सेशन. सी, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, आई डोंट नो व्हाट इज मेंटरशिप. ओके, ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता है. ओके, सी मेंटरशिप, इफ मेंटरशिप मीन्स गाइडिंग, तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट we do in every class. Okay, like what is not to be done, what is to be done, right?
like you may call whatever I just told in the class as mentorship. Okay, but I don't sell it as a commodity, that mentorship for 500 rupees. ऐसा कुछ नहीं है. There is no separate commodity or course for this. So mentorship is there for online or offline student, both alike, and that is given to students by multiple support systems that we have. Students can call me directly. They can text me. I share my WhatsApp number also, Telegram number also. दोनों सेम ही वैसे. Okay. तो दे कैन टेक्स्ट मी एंड दे कैन कॉल मी एज वेल. उसके टाइम हम फिक्स कर देते हैं, भाई सैटरडे संडे को छोड़ दो, बाकी मंडे टू फ्राइडे ये टाइम है, आप इसमें कॉल कर सकते हो. तो मेंटरशिप वहीं हो जाती है. ठीक है. बाकी ऑनलाइन जो आप पूछते हो क्वेश्चंस, उसमें भी मेंटरशिप हो ही जाती है, लाइक यू आर आस्किंग मी एंड आई एम आंसरिंग. ठीक है. सो आई थिंक आई हैव एड्रेस ऑल द क्वेश्चंस. और किसी का क्वेश्चन कुछ? दिवाली ब्रेक कितने दिनों का मिलेगा? दिवाली ब्रेक यार, दिवाली कब है इस साल? अक्टूबर, मिड अक्टूबर के बाद है. मेरा टारगेट तो ये होगा, मेरे ख्याल से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है 26 मई, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मेरे ख्याल से आपका दिवाली के ब्रेक से पहले ही कोर्स खत्म करेंगे हम. 28 अक्टूबर, 20 अक्टूबर. हाँ तो 20, अगर दिवाली ब्रेक होती भी है ना, तो मैक्सिमम 4-5 डेज की होती है, उससे ऊपर नहीं. हमारा कोशिश ये रहेगा कि उससे पहले कोर्स खत्म करें, अगर नहीं होता तो उसके बाद 1-2 हफ्ता और मैक्सिमम, बट 5 मंथ्स तो हम लेते हैं. ठीक है. मान के चलो उसको हम इजिली कट कर सकते हैं. मतलब लास्ट फाउंडेशन वाले स्टूडेंट ने मुझे एक चीज बोली कि सर चाहे कुछ हो जाए, आप अपनी क्लास में आंसर राइटिंग और पीवाईक्यूज जो डिस्कस करते हो उसको बंद मत करना. ठीक है, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट वो उनसे ज्यादा मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जब तक नहीं होगा, बच्चों को प्रैक्टिस नहीं होगी लिखने की, स्कोर कैसे आएगा? सिर्फ पढ़ना इज नॉट सफिशिएंट. तो इफ आई कट दैट कंपोनेंट तो इजिली 1.5 मंथ्स वहां से फ्री कर सकता हूँ, बट वो करूंगा नहीं मैं, इसलिए 5 मंथ्स तो मैं लेके ही रहूंगा. ठीक है. सर सेकंड बैच कब आएगा? सेकंड बैच आएगा आपका मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में. अगस्त में आएगा सेकंड बैच. ओके. थैंक्स फॉर दिस फ्राइडे मोटिवेशन. अच्छा, अच्छा ऐसा भी होता है क्या? फ्राइडे मोटिवेशन, और क्या कल सैटरडे मोटिवेशन लोगे कहीं से? ठीक है. सिंस पेपर टू हैंडआउट्स आर नॉट अवेलेबल, वी विल एसेंशियली बी राइटिंग मोर. वुड दैट रिड्यूस क्लास डिस्कशन? नो, क्लास डिस्कशन तब भी रहेंगे, वो हमेशा एक कांस्टेंट फैक्टर है. क्लास डिस्कशन इज अ कांस्टेंट फैक्टर, वो कहीं नहीं जाता. और डिक्टेशन भी कांस्टेंट है. फर्क इतना ही आ जाता है, इन पेपर टू हैंडआउट्स कम हो जाते हैं. ज्यादातर जो हम पढ़ते हैं वो क्लास बेस्ड ही होता है, और पेपर वन में जो हम पढ़ते हैं प्लस हैंडआउट, डिफरेंस कुछ नहीं. हैंडआउट सो आई डोंट रेकमेंड इवन फॉर पेपर वन, भले ही मैं दे दूं आपको. ओके. टाइमिंग 2 to 4:30 वाला. देखो 2 to 4:30 जो होता है ना, आप उस टाइम में अपना लंच लाइट रखो. आपको ऑनेस्टली बताता हूं मैं, अगर आपने राजमा चावल खाए, ठीक है, तो आपको नींद आएगी इस पीरियड में. आपने चावल कम खाने हैं लाइफ में, लाइफ में ही, सिर्फ सोशो में नहीं, सोशो की क्लास के लिए नहीं, लाइफ में इन जनरल आप चावल कम खाओ, रोटी कम खाओ. आप खाओ सब्जियां, वेजिटेबल्स खाओ अच्छी अच्छी, बहुत सारी. और दाल खाओ बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा दाल. यानी आप एक दाल को 3 रोटी के साथ खाओ, उससे अच्छा आप आधी रोटी खाओ और 3 कटोरी दाल. ठीक है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. और चाहे आपको मम्मी पापा जितना पूछे, बेटा पेट भर के खा रहे हो ना, कभी सीरियसली मत लेना उनकी बातों को. पेट भर के कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पेट भरने से नींद आती है. ठीक है. और खासकर अगर आपने फ्राइड खाया और चावल खाया, तब तो बहुत नींद आएगी. तो इसीलिए 2 to 4:30 की क्लास है. ठीक है. नींद आपकी भागेगी इस क्लास के अंदर, मैं आपको पक्का बता रहा हूँ. अगर आपने गलती से राजमा चावल खा लिया या कुछ भी ऐसा खाया जिससे नींद आती है, तो इस टाइम पीरियड में नींद आपकी वैसे ही भाग जाएगी. लेकिन फिर भी यू मस्ट अवॉइड ईटिंग एनीथिंग विच इज हाई इन कार्ब्स और कोलेस्ट्रॉल और फैट. ओके. मैं खुद भी हम आपको बताऊं, 5 साल पहले आई वॉज वेरी फैट. ओके. सुपर फैट. ओके. कोविड की वजह से.
क्योंकि कोविड में क्या हुआ, लॉकडाउन में इंसान बस खा रहा पी रहा है, ठीक है। तो मेरे को ये मेमोरी अपने साथ नहीं रखनी थी कि मैं कोविड का विक्टिम बना था कभी जिंदगी में, ठीक है, और उस टाइम पे मैंने बस खाया पिया। तो इसलिए मैंने कोशिश करी कि मैं अपना डाइट पे काम करूं, और मैं यही चाहता हूं कि आप सब लोग अपनी डाइट पे काम करो, बिकॉज इट डज क्रिएट लॉट ऑफ डिफरेंस आपके लाइफस्टाइल में भी, नींद को लेकर भी, घंटों को लेकर, कितने घंटे, कब कितने बजे सोते उठते हो। एनीवे, सो 2 to 4:30 इज द क्लास टाइमिंग। यस सर, आई सॉ योर 2020 यूट्यूब लेक्चर्स। अच्छा हाँ, ठीक है यार, एम्बेरस करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं समझ गया। सर, हाउ टू कॉन्टैक्ट और कनेक्ट विदाउट एनी परचेज बिकॉज ऑफ मनी इशू, आई डोंट टेक दिस। वीवो, देखो, अगर आप ऑफलाइन, क्या अगर आप ऑनलाइन हो, मतलब इन द सेंस आप दिल्ली से बाहर हो, तो आप एक बार यहाँ सेंटर पे आ जाओ, हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या क्या इशू आपको आ रहा है, कैसे फाइनेंशियल इशू किस चीज में आ रहा है, एंड व्हाट इज द पॉसिबल सोल्यूशन, अगर आप दिल्ली से बाहर हो। Otherwise, you can write a mail and I'll respond to that. I saw some of your old videos. अच्छा, ठीक है. And if I see you now, complete transformation, huge respect. Uh, ठीक है यार. तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने मेरे को रिस्पेक्ट दी इस वजह से. पर जो भी है, रिस्पेक्ट इज इंपॉर्टेंट लाइफ में, ठीक है, चाहे वो जिस मर्जी से आए और जैसे मर्जी वजह से आए. और देखो, ऐसा है ना कि अम, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको करने की जरूरत ही ना पड़े. मैं तो ये चाहता हूँ कि आप ओबीस से स्लिम हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको करने की जरूरत ही ना पड़े. उसके लिए क्या करना है, आपको जरूरत नहीं है दौड़ने की. इतना लोग बोलेंगे कि सुबह उठो 5 बजे, दौड़ो, पानी पियो, भर भर, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको. बस खाना अच्छा खाओ. ट्रस्ट मी, इवन पीपल हु आर गोइंग टू जिम, वो भी बोलेंगे भाई 70% तो डाइट ही होता है. डाइट तो मेरे हिसाब से 90% होता है, 70 कम बोल रहे हैं क्योंकि उनको जस्टिफाई करना है जिम का 30% वो जा रहे हैं जो, ठीक है. असली में 90% ही है डाइट. ओके. तो खाना आपको बहुत आराम से और सोच समझ के खाना है. ओके, फाइन सर, आई डो ओके, ठीक है निकिता, यू कैन राइट वन ईमेल, मैं वहां पे आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा. जो हमारा लेवल अप का ईमेल है, support@levelupias.com, उस पर ईमेल कर देना. तो एडमिन को हम बोल देंगे, एक बार डिस्कस कर लेंगे क्या उसमें हो सकता है. ओके, फाइन, ठीक है. सो विद दिस वी कंक्लूड द सेशन. और जो सैंपल हैंडआउट है जो हमको देना है आपको, you can collect that handout copy. By chance, if you are passing this institute tomorrow, you can collect this copy. That will be hardly 5-6 pages from unit 1, at least some part of unit 1, so that will give you an idea as to what kind of notes do we have in form of handout. बाकी ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए हमने ये सेम चीजें अपलोड कर देनी है शाम तक, ठीक है. सो विद दिस आई कंक्लूड द सेशन. थैंक यू सो मच. ओके.